Yes. Radhe Shyamji, you want to say anything? Radhe Shyamji, your hand is raised. Radhe Shyamji. Okay. Uh, it's 4-2 right now. And Radhe Shyamji, yes, okay. You want to say anything? Or it is by mistake you have raised your hand? Please do respond because you all are teachers from higher education. Interaction is always good. If you have any issue, you can directly contact me. Sanjeev ji, any participant, please respond. Sopandeep ji, are you getting me? Deepa madam, my voice is coming? Yes, sir. Yes, Yes. sir. Fully. Okay. Fully, sir. Yes, sir, your voice is coming. Okay, thank you so much. So now, I think with the kind permission of our resource person of the day, Professor Asim Zafar sir, can we start, sir? I'm always here. Okay. Okay, sir. Please Thank go you, ahead. sir. Sir, this is 20th NEP workshop, sir. We have successfully completed 19. This is 20th one. So we have been given the target of 36 workshop, inshallah. With your blessings, we will be able to complete that also. Good enough. Good effort. Sir, participants are the assistant professors, lecturers, librarians, associate professors working in different colleges and universities of India. And sir, they are very sincere and dedicated, and they know the art of teaching and learning. That is, they know the etiquettes of teaching and learning. As and when you will ask them, otherwise, then only they will open their mics. Otherwise, they are all are on mute mode. If you will ask them to open their cameras, they will open their cameras. It will be your sir prerogative during the interaction. Now, sir, let us have a very brief introduction of our resource person. Although he does not need introduction, Professor Asim Zafar sir, a very senior teacher in the Aligarh Muslim University, a very famous personality of Aligarh Muslim University, Professor Asim Zafar sir, who is having more than 3 decades experience in the field of teaching and learning and administration. Sir is presently working as a professor in the Department of Computer Science, Aligarh Muslim University, Aligarh. Yes, And he is having the, along with the university experience, he is having the administrative industry experience also. Before joining Aligarh Muslim University, he was in he was in Modi. I can't even pronounce Olivetti. It is Modi Olivetti. Okay, sir. Olivit Limited ND. Sir is the gold medalist of MCA. He has completed his BSc, MSc, B.Ed, MCA, and PhD. Sir has published around 90 research papers in very good journals of national and international repute. Sir has also presented a good number of papers in different national seminars and conferences. Sir has organized around 25 conferences and seminars. Sir has completed 4 research projects, including 3 projects when he was in the King Abdul Aziz University. Sir is regularly a resource person in the HRDCs or MMTC now of our country. He is associated with refresher courses, FDPs, and other orientation programs and all. Sir has developed study material for MC and BCA courses. Sir has developed many softwares and helped in implementation also. Some of the softwares which he has developed are library management system, election management system, EMS, sales order processing system, HRD, MIS, and payroll system, hospital management system. As participants, you can see these systems are helping in e-governance. Sir, along with this academic qualification, sir is having administrative experience also. Presently, he is the OSD of Aligarh Muslim University. A very big responsibility is on his shoulders. Sir has also successfully worked as chairperson, Department of Computer Science, Aligarh Muslim University, Aligarh. Sir is also working as coordinator of Indira Gandhi National Open University, which is of which the study center is in Aligarh. Sir is also working as UGC SWAM coordinator, member of Center for Internal Quality Assurance,
Center for Distance Education, AMU. Sir is working as a convener of website committee, Aligarh Muslim University, Aligarh. Member of ranking committee, Aligarh Muslim University, Aligarh. Sir has successfully worked as assistant DSW, deputy DSW, assistant superintendent of examination, and superintendent of examination of his department. Sir, and many other responsibilities are there to his credit. Sir has worked as a very active member of University Court, Aligarh Muslim University, a very active member of Academic Council, principal body of AMU. He is always busy in developing softwares for the citizens of our country, and he is the most appropriate person to talk on e-governance. Participants, with these words, I would like to invite Professor Asim Zafar sir to talk on the topic e-governance. Thank you very much, sir. You are busy. We know that how busy you are, especially these days when session is just about to begin, new session. But you always, sir, whenever we request, you always accept our invitation and our request also. So thank you so much, sir. Thank you very much, sir. Thank you, Dr. Shakir, for your kind words and detailed introduction over here. Hope I'm audible to all of you. Please, anybody can confirm. Yes, sir. Okay, thank you. Thank you. So, as informed by Dr. Shakir Saab, that today I have been given the responsibility to talk to you on the topic of e-governance. So, please allow me to share my screen with you. I hope my slide is visible to all of you. Yes, sir. Okay, fine. So, today we will be talking about e-governance. So, before we go into the details of the nitty-gritties of e-governance, these are the topics, so these are the agenda item which we would like to discuss with you in 1.5 hour session. So first of all, we see that what is e-governance. So before e-governance, we will try to define what is government and what is the governance process. And then we will see how we can define e-governance. We will discuss the role of technology in governance. There are several service models, so that we will discuss what are various service delivery models of e-governance. After discussing the basic concepts, we will be discussing some success stories of public-private partnership model. Just to name a few, all of you are very much aware with passport seva or healthcare systems or tax returns filing system, etc. So we will see how the time permits over there. We will try to discuss any of these models, which are a very successful model basically. So we'll discuss just to have an idea how the e-governance can ease the task of any governing body. So that we will see. E-governance, after that we will see e-governance in universities and what is the NEP mandate about e-governance, we will see. After that, we will be discussing present status of e-governance in Indian universities. Many of the universities has implemented e-governance system. So we do have result of some studies which has been carried out all across India. So we will see what is the present status and what these studies suggest basically. After that, if we are interested in implementing e-governance system in our university, what are the steps required for that? We will discuss this as well. And we will see what is the success of e-governance, what is the success rate of e-governance in India, what are the best practices of e-governance, and at the last we will see the conclusion part. So this is the topic which you would like to cover in today's discussion. So first of all, sir, we will discuss, well, try to define what is government and then what is governance. So please confirm anybody, am I audible and my slides are visible to all of you, sir? Yes, sir. Yes, sir. Fine, okay. Audible, sir. Okay, sir, thank you. So we can define the government. What is government basically? We keep on telling us central government ho sakta hai, state government ho sakta hai, and we're talking about governance in our institutions, educational institutions as well. Sometimes the government process, the governance may be in a company, IT company, maybe any industry, it may be that. So how we can define in general the government, right? So government basically is a set of a structure, rules, roles,
and systems and a group of people for governing any institution. For governing any institution. So just like we call it, say for example, we are talking about digestive system. Digestive system is not the name of one component. There are several components which act together in coordination to perform the task of, or to perform the activity related to digestion. So it is a group of, say, organs or group of components which act together. In the similar way, in the government, there is not a single entity which is working basically. So a group of people are there. Somebody maybe, for example, say for example, we are talking about central government. So central government is not the name of a single entity basically. And a lot of people are there. Maybe starting from maybe the president is part of the central government, prime minister is there, cabinet ministers are there, cabinet secretaries are there, and everybody are on different roles. Prime minister is in a different role, cabinet minister are in a different role, minister of a state are in the different role. So everybody has defined roles, and they act together according to certain rules to provide certain services to their citizen or to govern the institution. In this case, where I'm talking about, they govern the country basically. So we can define here the government as a set of structure, rules, roles, systems, and a group of people for governing a country or for governing an institution in general. I hope the definition is clear to you, sir. Government is not the name of a single body. It is a combination of a group of people or group of multiple roles, and they are in different roles basically, and they act together according to certain rules to provide or to govern an institution. That institution may be a country, that institution may be college, that institution may be university, that institution may be an IT industry, or that institution may be a company, any company. So everybody, everywhere we do have certain form of government. Now, sir, I would like to ask you, is it clear, sir? Definition of government is clear, or do you need more explanation on that? Yes, sir. So it is clear. okay, sir. And we are not talking about the country only. The governance process, the government may be at the university level, at the college level, at the company level. Company means any business organization I am talking about, and maybe on state level, say for the state government, maybe central level, maybe we calling it central government, and like that. Now, okay, fine. After I got it. So government is nothing but a set of people, you can say, or a set of a structure, and where different people are having different roles, and they are acting together according to certain rules. They are bound by certain. In our case means in central government, constitution is there, several ordinances are there, rules and regulations are there, and all the people are bound to act according to that rule basically. So they are acting based on certain rules and regulation to govern that organization. Fine, okay. That organization may be the government, central government, maybe the country, maybe the state, maybe a company, maybe educational institution, maybe college, maybe university, maybe company, anything like that. So everywhere we do have certain form of government. Now, especially come to our college model or our university model. Sorry. Whenever we're talking about university model or college model, say for example, we do have certain form of government in college level as well. Who are the part of the government? First of all, the principal of that college, proctor of that college, dean of the college, head of the department of college, and other functionaries are there. Taken together, they form the governing body or the government of that college, and they are responsible for governing that institution. Similarly, in case of university, we start from the vice chancellor. So vice chancellor is part of the government, registrar is part of the government, proctor is part of the government, deans of various faculties are part of the government, head of the departments are part of the government, and several other functionaries are there. Taken together, they act in different roles. Vice chancellor is acting in different roles, pro vice chancellor is acting different roles, proctor is having different role, deans, student welfare is having different roles. Everybody is having different role, and they are acting or they are working according to certain rules, and rules are there and responsibilities are defined. Who will do what kind of job? So they are working
together and in coordination, I mean to say, according to certain rules to सर govern थोड़ा that. हिंदी में भी हो जाए तो ठीक है सर, अच्छी बीच बात। बीच में हिंदी में भी सर। हाँ जी, to govern this organization. मैं तो सर इंग्लिश भी हिंदी ही की तरह बोल रहा हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग लाइक एनी इंग्लिश, हिंदी चलेगा। तो खैर, गवर्नमेंट सर क्या है, यहाँ पर किसी एक इकाई का नाम नहीं है ना, यहाँ पर अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, अलग अलग लोग हैं, एंड दे आर एक्टिंग टुगेदर, एक ही साथ ही काम कर रहे हैं, एक इकाई की तरह काम कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन जो डिफाइंड है, और टू गवर्न दैट institution. That institution may be country, that institution may be company, that institution may be a college or university, whatever it is there. Fine. So now another associated term is there, governance. One is government. Government governs. Government sir क्या करता है, government जो है governs करता है according to certain governance क्या है, governance is the way government works. किस तरह से गवर्नमेंट काम करती है उसको हम लोग गवर्नेंस बोलते हैं। एंड द बेसिक फंक्शन ऑफ द गवर्नेंस इज टू शेयर several kind of information with the stakeholders, or to share various kinds of service, or to deliver various kinds of services to their stakeholders. A stakeholder means whom we are governing as a government. Say for example, in case of the country, if you are talking about governing a country, then who are the stakeholders? First let us define. So first and foremost is the citizens of that country are the stakeholders. ये सारा गवर्नमेंट जो है या गवर्निंग प्रोसेस जो है वो किसके लिए है, नागरिक के लिए है, सिटीजन्स के लिए है। So citizens are the stakeholder, and citizens are not the only stakeholder. There may be n number of stakeholders. बहुत सारे stakeholder हो सकते हैं, and who are these stakeholders sir? Employee of the country may be the stakeholders, businessman or the industrialist of that country may be a stakeholder. Sometime you can call the senior citizens may be the stakeholders, some officers may be, several stakeholders are there. In case of a company, if you are talking about a business organization, then who are the stakeholder? First and foremost stakeholders are the customers. In that case, customers are the stakeholders. Apart from customers, who are the stakeholders sir? The employees of that company are the stakeholders. The vendors are the stakeholders. Vendors means from whom the company purchase goods for manufacturing. So vendors are the stakeholders. So several stakeholders are there. In our case means in our educational system, if you are talking about in our college or university system, who are the stakeholders sir? Prime stakeholder is the students. Next stakeholder are the teachers. Next stakeholder are the parents. Another stakeholders are alumni of that college or university, alumni of that department, whosoever it may be. So these are various, and even the industry where the students gets absorbed, the jobs, they are also treated as service providers. I mean to say, they are also treated as the stakeholders. So dear participants, I hope the definition of a stakeholder is clear. Who are the stakeholder? For whom the government provides different kind of services. Clear है सर? स्टेक होल्डर कौन होते हैं? रिस्पॉन्ड कीजिएगा सर. Who are the stakeholders? Yes, sir. Who are the stakeholders sir? मैंने आपसे बताया अभी कि जैसे कि गवर्नमेंट के केस में है ना, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, सिटीजन्स आर द प्राइम स्टेक होल्डर. सारा काम जो किया जाता है, सरकार जो भी काम कर रही है, जो भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, यूनिवर्सिटी किसके लिए करती है? वो नागरिकों के लिए करती है. तो नागरिक आर द प्राइम स्टेक होल्डर्स. उसके अलावा सिर्फ नागरिक ही नहीं होते. हाँ जी. So I was discussing stakeholders. So in case of sir institutions, हम लोग business, अगर आप educational institution की बात करते हैं, in case of educational institutions, who are the stakeholders? You see, हम जो कॉलेज खोलते हैं या यूनिवर्सिटी खोल के रखे हुए हमने, तो किसके लिए हमने खोला हुआ है? हमने प्रिंसिपल साहब के लिए नहीं खोला हुआ है, रजिस्ट्रार साहब के लिए नहीं खोला हुआ है. दे आर पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट है. ये तो इनको सर्विसेज प्रोवाइड करना, किनको प्रोवाइड करना है प्राइमरीली सर? बताइए किसके लिए है स्कूल कॉलेज? प्राइम स्टेक होल्डर कौन है सर? Sir, students are the prime stakeholder. Very good, very good ma'am, very good. जनता के लिए सर. जी सर, योगेश जी क्या बोल रहे हैं? जनता के लिए सर.
हाँ, जनता के लिए, ठीक है। नहीं, हम बात कर रहे हैं अभी स्टूडेंट माने कॉलेज के लिए, कॉलेज के लिए बताइए, कॉलेज या यूनिवर्सिटी के केस में, वो तो सरकार के केस में आपने जनता बता दिया। तो जैसे कि देखिए कॉलेज के केस में हु आर द प्राइम स्टेक होल्डर, हमारे स्टूडेंट है, सारा काम हम स्टूडेंट के लिए कर रहे हैं यहाँ पर, जो हमने कॉलेज खोला ही करा ताकि वो बेनिफिट। दूसरा स्टेक होल्डर, सिर्फ स्टूडेंट अकेला स्टेक होल्डर नहीं है सर, माने और कौन हो सकते हैं, एम्प्लॉइज, टीचर्स ऑफ द कॉलेज, अदर स्टेक होल्डर। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपने कॉलेज खोल दिया, वहां टीचर ही नहीं है, सिर्फ स्टूडेंट ही स्टूडेंट है, तो कैसे काम चलेगा। तो दूसरा स्टेक होल्डर्स जो है वो कौन है, टीचर्स हैं, ठीक है साहब, टीचर भी हो गए स्टेक होल्डर, स्टूडेंट हो गए स्टेक होल्डर, और कौन है सर, पेरेंट्स स्टेक होल्डर है सर। पेरेंट्स भी जानना चाहते हैं कि किस क्वालिटी का एजुकेशन आप प्रोवाइड कर रहे हैं अपनी संस्था में, ताकि वो डिसाइड कर सकें कि वेदर वी हैव टू एडमिट अवर स्टूडेंट्स और our ward or our children to your college or not, or to your institution or not. So in that sense parents भी जो है, यानी आपको पेरेंट्स को भी वेल इन्फॉर्म रखना है कि देखिए हम दिस इज द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन व्हिच वी आर प्रोवाइडिंग ओवर हियर, सो दैट बाय impressed, after getting impressed from your quality of the institution, they decide that whether they should get their wards or get their students or get their children admitted in your university or college or not. So in this sense, who are another stakeholder sir, parents भी, अभिभावक भी जो क्या है सर, स्टेक होल्डर हैं। और कौन स्टेक होल्डर हो सकता है सर, एलुमनाई ऑफ द डिपार्टमेंट सर, जो एलुमनाई ऑफ द कॉलेज है, जो पढ़ के यहाँ से जा चुके हैं, वो भी स्टेक होल्डर हैं। वो आपके एम्बेसडर होते हैं, बाहर जाकर के वो बताते हैं कि देखिए सर ये बहुत अच्छा कॉलेज है, ये हमारे जाइएगा, यहाँ इस तरह की सुविधाएं हैं, एंड लाइक दैट। और जो बच्चे आपके पढ़ के निकलते हैं उनको वो आगे जाकर के मदद भी करते हैं कि देखो साहब वी आर नाउ वर्किंग ओवर हियर एज ए मैनेजर, तुम हमारे इंस्टीट्यूशन में आ जाओ, यहाँ पर तुमको हम जॉब देंगे, एंड सो सो दे कीप ऑन वेरी गुड रिलेशनशिप विद देयर इंस्टीट्यूशन। तो इन दैट सेंस जो एलुमनाई है वो भी क्या है सर, हमारे स्टेक होल्डर्स हैं। अच्छा, और कौन स्टेक होल्डर हो सकता है सर, इंडस्ट्री पीपल, वेयर आवर स्टूडेंट्स गेट्स प्लेस्ड, गेट्स जॉब ओवर देयर। तो जो जॉब प्रोवाइडर्स हैं वो भी स्टेक होल्डर है, क्योंकि वो जानना चाहते हैं कि आप किस क्वालिटी का आपका कॉलेज एजुकेशन दे रहा है। अच्छी क्वालिटी का देगा तो मेनी अ टाइम्स द कंपनी विल विजिट टू योर कॉलेज फॉर द प्लेसमेंट पर्पस, फॉर गेटिंग द स्टूडेंट्स selected or getting the students selected for jobs. So they will visit your student to select the students many a time. लेकिन अगर उनको लगता नहीं, quality of education is not very good at your institution, you lack or your college lacks in many aspects and you are not producing quality product in terms of students, then they will not visit your college. So in that sense, job providers or service providers or companies basically or industry people are also considered to be a very important stakeholder in case of the college or the universities. I hope sir it is clear to you who are there, what is the definition of stakeholders. ठीक है सर, बताएं सर पहले थोड़ा सा, क्लियर है सर स्टेक होल्डर्स डेफिनेशन? एनीबडी कैन रिस्पॉन्ड? सुन पा रहे हैं सर? हेलो? Yes, Hello? sir. अच्छा, Yes, sir, it is clear. क्लियर है, ठीक है, ठीक है। तो हम लोगों ने दो तीन चीजें क्लियर कर ली कि गवर्नमेंट क्या होता है, स्टेक होल्डर्स क्या होता है। अब वी आर कंसिडरिंग ऑन गवर्नेंस। व्हाट डू वी मीन बाय द टर्म गवर्नेंस? गवर्नेंस का मतलब है कि हाउ द गवर्नमेंट वर्क्स, द वे गवर्नमेंट वर्क्स और द प्रैक्टिसेस व्हिच द गवर्नमेंट यूज फॉर वर्किंग। तो वर्किंग में बेसिक वर्किंग क्या होता है सर, कि द मेन पर्पस ऑफ द गवर्नमेंट is to provide certain kind of informations to their citizens or to their stakeholders. Now we will use the term stakeholders. So the main task of the government is to provide certain sort of informations to their stakeholders, as well as to provide certain kind of services or to deliver certain kind of services to their stakeholders. How they provide the services or how they provide different kind of information is known as governance. How they provide. तो जैसे जैसे देखिए ना, आप सरकार के केस में बात करिए तो सरकार अलग अलग तरह की स्कीम्स चलाते रहते हैं अलग अलग लोगों के लिए। तो वो बिल बोर्ड के थ्रू, बड़े बड़े बोर्ड्स के थ्रू, पावर्स के, अखबार के थ्रू उसमें एडवर्टीजमेंट देते हैं कि सरकार की ये योजना चल रही है, इससे आप लाभान्वित हो सकते हैं। तो यहाँ सरकार क्या कर रही है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है वे थ्रू वेरियस मीन्स टू देयर सिटीजन्स, टू देयर स्टेक होल्डर्स। बहुत से सर्विसेज हैं जो कि सर्विस हैं जो कि प्रोवाइड करती हैं टू देयर सिटीजन। गवर्नमेंट प्रोवाइड्स वेरियस काइंड्स ऑफ और गवर्नमेंट डिलीवर्स वेरियस काइंड ऑफ सर्विसेज टू देयर स्टेक होल्डर। जैसे आप एग्जांपल के लिए हम ले रहे हैं कि मान लीजिए आपको पासपोर्ट इशू करवाना है, तो पासपोर्ट इशू कहां से होगा, पासपोर्ट ऑफिस से इशू होता है।
तो सरकार अपने नागरिकों को या जो जेन्युइन नागरिक हैं उनके लिए पासपोर्ट इशू करती है। तो ये एक सर्विस है ना, एक सेवा है। गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग सर्विस, विच सर्विस? टू इशू पासपोर्ट टू देयर सिटीजन्स। तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर सर्विस प्रोवाइड कर रही है। तो द मेन फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट, या और देखिए ना कि राशन के दुकान होते हैं, सभी जगह राशन होते हैं। आपने बीपीएल का नाम सुना होगा, बिलो पॉवर्टी लाइन से पीपल होते हैं, उनको फ्री में अनाज दिया जा रहा है या बहुत कम पैसे में उनको दे आर प्रोवाइडिंग ग्रेन्स और फूड ग्रेन्स टू दीज पीपल हु कम्स अंडर बीपीएल कैटेगरी। तो यहाँ पर क्या कर रही है सरकार? डिलीवर कर रही है सरकार, ये गवर्नमेंट इज डिलीवरिंग सर्टेन सर्विसेज टू देयर सिटीजन्स। ठीक है सर। तो द मेन पर्पस ऑफ द गवर्नमेंट is to deliver or certain services or to provide certain kind of information to their stakeholders. But how they provide, the way they are providing is known as governance. The way government works or way the government provides information or deliver services to their stakeholder is known as governance. अगर बहुत अच्छे ढंग से सरकार इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है, सब तक, सभी जनता तक इंफॉर्मेशन पहुंच रहा है, सर्विसेज जो सरकार की हैं, सेवाएं जो सरकार की हैं कि बीपीएल के लोगों को अनाज मिलेगा या राशन दुकान में कम पैसे पे या सस्ते दरों पे अनाज मिलेगा, ये सर्विसेज हैं। अगर ये सर्विसेज जनता तक ठीक से पहुंच रही हैं, द गवर्नमेंट इज सक्सेसफुली प्रोवाइडिंग ऑल दीज थिंग्स, तो हम कहते हैं कि गवर्नेंस बहुत अच्छा है। और अगर यही सब चीजें ठीक से नहीं हो रही होती हैं, है ना, जैसे कि बहुत सी चीजें होती हैं, ये अगर ठीक से नहीं हो रही तो हम कहते हैं कि सरकार का गवर्नेंस अच्छा नहीं है। तो सिमिलर काइंड ऑफ थिंग हैपेंस इन केस ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एज वेल। आप अगर अपने कॉलेज को, अपने यूनिवर्सिटी को, जो उसकी गवर्निंग बॉडी है, जो गवर्नमेंट है, इफ दे आर गवर्निंग वेल, गवर्निंग का मतलब क्या हुआ सर? कि इफ दे आर प्रोवाइडिंग रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन टू द स्टूडेंट, टू द टीचर्स, टू द एलुमनाई, टू द इंडस्ट्री पीपल इन ए वेरी गुड वे, कि कब एडमिशन होगा, कब एग्जाम होगा, इस तरह की सारी चीजें अगर ठीक ढंग से पहुंच रही हो तो बोलेंगे नहीं नहीं बहुत अच्छा गवर्नमेंट है, बहुत अच्छा कॉलेज है। एंड वट एवर सर्विसेज दे आर प्रोवाइडिंग, जैसे हम लोग कॉलेज में कौन सी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो लड़के को अगर चाहिए मार्कशीट लेना है, उसको डिग्री चाहिए, उसको कोई सर्टिफिकेट चाहिए, ये सब सर्विसेज हैं। एज ए टीचर हमें छुट्टी चाहिए, हमें बाहर जाना है, उसके लिए कुछ पैसे चाहिए, लोन चाहिए, तो ये सब सर्विसेज हैं। दिस इज द फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड सर्टेन सर्विसेज टू देयर स्टेक होल्डर्स। ये सब चीजें अगर ठीक ढंग से हो रही हैं, गवर्नमेंट आपको ठीक ढंग से पहुंचा रही है सर्विसेज, देन वी कैन से दैट द गवर्नेंस इज वेरी गुड सर। सो आई होप यू माइट हैव अंडरस्टूड द टर्म गवर्नेंस। तो गवर्नेंस क्या है सर? द वे दीज सर्विसेज आर डिलीवर्ड और द वे सर्टेन इंफॉर्मेशंस आर प्रोवाइडेड टू द स्टेक होल्डर्स। मैंने आपको एग्जांपल दिया कि सरकार के केस में देखिए ना, बड़े बड़े अखबारों में क्या आता है सर, न्यूज एडवर्टीजमेंट आते हैं कि सरकार की योजना चल रही है, 15 तारीख से लेकर के 30 तारीख तक ऐसा होगा, या कहीं कहीं देखते होंगे बड़े बड़े बिलबोर्ड्स लगे हुए हैं, उसके माध्यम से सरकार आप तक इंफॉर्मेशन या सूचनाएं पहुंचाती हैं और सर्विस डिलीवरी भी करती हैं। जो भी, जैसे कि आपने बताया मैंने, कि मान लीजिए कि अपने एग्जांपल, मैंने एक एग्जांपल लिया, या मान लीजिए ना आपको टैक्स रिटर्न भरना है, तो टैक्स रिटर्न भरना एक सेवा है ना, कैसे हम भरेंगे, कहाँ भरेंगे, हमारे लिए जरूरी भी है। तो उसके लिए सरकार ने एक पोर्टल बना दिया है कि टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए आपको कहीं आने जाने की सर जरूरत नहीं है, उस पोर्टल पे जाइए, एक फॉर्म आएगा, उस पर भर दीजिए, और सरकार आपको क्या कर रही है, यहाँ पर एक सर्विस प्रोवाइड कर रही है, एक सेवा प्रोवाइड कर रही है। सिमिलरली इफ यू नीड टू विजिट सम फॉरेन कंट्री, फॉर दैट यू नीड ए पासपोर्ट, वैलिड पासपोर्ट। पासपोर्ट कहाँ से मिलेगा सर? तो फिर एक सेवा है ये, जो गवर्नमेंट सेवा प्रोवाइड कर रही है, आपको सर्विस प्रोवाइड कर रही है कि आप पासपोर्ट ऑफिस में जाके अप्लाई करें, एंड इफ एवरीथिंग इज फाइन ओके, देन यू विल बी इशूड ए वैलिड पासपोर्ट, तो आपको पासपोर्ट मिल जाएगा। सो अब ये काम कैसे सरकार कर रही है? अच्छे ढंग से कर रही है तो अच्छा गवर्नेंस कहलाएगा। लेकिन पासपोर्ट इशू करने में अगर बहुत से बाधाएं हैं, हमको ठीक ढंग से नहीं हो पा रहा, बहुत व्यवस्थित नहीं है, तो इसका गवर्नेंस अच्छा नहीं है। सो आई होप दैट नाउ 3 terms are very clear to you sir. What is government, what is a stakeholder, and what is the process of governance, what is the meaning of governance? Is it clear sir? यहाँ तक ठीक है सर? गवर्नेंस तक की बात बताएं सर आगे, तो फिर आगे बात करते हैं सर। आप लोग दिख तो रहे हैं यहाँ पर बहुत सारे लोग, हमको 33 जी सर। जी सर। हाँ सर। जी सर। जी सर, सुन रहे हैं जी सर। सर। ठीक है सर, तो यहाँ तक सब ठीक है, बात अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए सर, जो गवर्नेंस का प्रोसेस है, ये गवर्नमेंट और गवर्नेंस आज की बात नहीं है।
आप एकदम प्राचीन भारत में चले जाइए, मध्यकालीन भारत में चले जाइए, कभी भी चले जाइए, तो वहां भी सरकारें हुआ करती थी, गवर्नमेंट ऑलवेज हुआ करता था। और वो गवर्नमेंट भी क्या करती थी, कुछ सूचनाएं, जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रदान किया करती थी अपने सिटीजन्स को, और कुछ सेवाएं भी प्रदान की। यही गवर्नमेंट का ऑलवेज काम है। से फॉर एग्जाम्पल हम राजतंत्र की बात करते हैं, जब पुराने जमाने में राजा हुआ करते थे, तो राजा थे, मंत्री थे, मंत्रिमंडल हुआ करता था उनका, ये सब क्या थे मिलकर के, यही गवर्नमेंट की फॉर्म है, ये गवर्नमेंट है। या फिर जो उनके सिपाही हुआ करते थे, पुलिस हुआ करते, जो भी थे, ये सब मिलकर गवर्नमेंट है। इनका काम क्या था सर, गवर्न करना। गवर्न करने का मतलब क्या हुआ कि कुछ सूचनाएं सरकार की तरफ से, अगर तो पहले देखते थे कि एक आदमी ड्रम लेकर के जाता था, डन 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 कुछ बोलता था सर, कि आज महामंत्री ये करेंगे वो करेंगे, इस तरह के अनाउंसमेंट करते थे पुराने जमाने में। तो जो भी सूचनाएं थे, यही मैं कह रहा हूँ, शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। सो देयर वाज सम मेथड ऑफ शेयरिंग द इंफॉर्मेशन एट दैट टाइम। वक्त के साथ साथ इंफॉर्मेशन शेयर करने के तरीके भी बदलने लगे। पहले तो ढोल बजा करके एक आदमी पूरे में, शहर में या पूरे गांव में या पूरे जो भी उनका देश था, उसमें बोल देता था कि हाँ भाई ये होने वाला, आज मंत्री जी या आज महाराज ये काम करेंगे, आज अन्न फ्री में बांटेंगे, या जो भी उनको सूचनाएं प्रोवाइड करना था वो करते थे। या जो सर्विसेज गवर्नमेंट देती है, से फॉर एग्जाम्पल कि पहले एक राजा ने कैंप लगाया कि हाँ भाई गरीबों के लिए आज ये कैंप लगा है, या जो भी सर्विस प्रोवाइड हो रही है, तो उसकी सूचना कैसे जनता तक पहुंची। तो पहले भी ये काम होता था, गवर्नमेंट वाज देयर, गवर्नेंस प्रोसेस वाज देयर, गवर्नेंस पहले भी हो रहा था। लेकिन वक्त के साथ साथ कि सूचना कैसे लोगों तक पहुंचाई जाए, हाउ वी कैन शेयर इंफॉर्मेशन विद हाउ द गवर्नमेंट वर्क्स, इस पे चेंजेस आते रहे सर। आप देखिए ना, अब आप ढोल लेकर के नहीं करता, अब आप क्या करते हैं, कोई भी सरकार को इन्फॉर्मेशन देना है तो बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स हैं, उसमें बड़े बड़े उनके एडवर्टाइजमेंट आ जाते हैं, वहां से देख के आदमी समझ जाता है। कभी कभी बड़े बड़े बिलबोर्ड्स या बोर्ड्स लग जाते हैं, कभी कभी बहुत सारे पम्फलेट्स बांट दिए जाते हैं, जिसके थ्रू भी सूचनाएं जनता तक पहुंच जाती हैं। सो आई मीन टू से द वे इंफॉर्मेशन इज शेयर्ड हैज चेंज्ड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो अब क्या चेंजेस हुआ सर? अब तो ठीक है, अखबार तक तो बात ठीक है सर। जैसे मान लीजिए सर कि कॉलेज की बात करते हैं हम लोग, क्योंकि वी आर ऑल ऑफ अस आर कंसर्न विद टीचिंग और बेसिकली एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस, तो हम लोग उससे रिलेटेड बात करते हैं। हम लोग अपने कॉलेज में सर सूचनाएं जो हैं या इंफॉर्मेशन जो है कैसे प्रदान करते हैं स्टूडेंट को, तो हम लोग एक नोटिस निकालते हैं कागज पे सर, और उसको नोटिस बोर्ड पे लगा देते हैं। इज दिस द प्रिविलेंट मेथड और नॉट? यही तो है सर। अभी कोई भी सूचना हमें देनी होती है या जो भी इंफॉर्मेशन है, दैट इज टाइप्ड इन द फॉर्म ऑफ ए नोटिस एंड इट इज पुट ऑन द नोटिस बोर्ड। लेकिन सर हम व्हाट्सएप में भी भेज देते हैं सूचना। अब देखिए सर, वेरी गुड। अगर आपने व्हाट्सएप में भेज दिया, यानी कहने का मतलब अगर आईसीटी का इस्तेमाल कर लिया आपने सूचना को क्या करने के लिए, प्रसारित करने के लिए, देन दैट गवर्नेंस विल बी नोन एज ई गवर्नेंस। बस इतनी सी बात है सर। अगर किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का आपने इस्तेमाल किया, आईसीटी का इस्तेमाल किया, जिसके थ्रू आप स्टेक होल्डर तक क्या पहुंचा रहे हैं, सूचनाएं पहुंचा रहे हैं, इंफॉर्मेशन पहुंचा रहे हैं, देन दैट गवर्नेंस विल बी नोन एज ई गवर्नेंस। बस इतनी सी बात है सर। और अगर आप प्लेन जैसे कि आप नोटिस बोर्ड के थ्रू कर रहे हैं, तो दैट विल बी नोन एज गवर्नेंस। लेकिन आप जैसे कहते हैं कि व्हाट्सएप के थ्रू कर दिया। अच्छा, कुछ लोग और स्मार्ट हैं सर, आजकल क्या करते हैं कि उन्होंने अपना एक वेबसाइट बना लिया कॉलेज का, और वो सूचनाएं वेबसाइट में डाल देते हैं, है ना। व्हाट्सएप के क्या होगा सर, लिमिटेड, व्हाट्सएप की एक लिमिटेड कैपेबिलिटी है। व्हाट्सएप पे कहां तक सूचना भेज सकते हैं, जिन बच्चों के व्हाट्सएप नंबर आपके फोन पे हैं, जो आपके व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए हैं, सिर्फ वहीं तक भेज सकते हैं, 100 200 500 जो भी नंबर आपके साथ होंगे। लेकिन अगर आप सर यही सूचना एक कॉलेज का वेबसाइट बना लेते हैं और वेबसाइट पे डाल देते हैं, तो अब पूरी दुनिया में ये आदमी जिसके पास भी आपके कॉलेज का वेबसाइट होगा जाके देखेगा, अच्छा जो भी कॉलेज का आपका नाम हो, प्रेसिडेंसी कॉलेज या जो भी कॉलेज का नाम हो, देखेगा वेबसाइट, गूगल पे जाके देखा, अच्छा इनका वेबसाइट खुल गया, ये सारे इंफॉर्मेशन वहां से देख सकते हैं। सो इफ यू आर यूजिंग ICT, information and communication technology, to share information with the stakeholders, then the process of governance will be known as e-governance. क्लियर हो गया सर ई गवर्नेंस क्या है? जी सर। तो ई गवर्नेंस कुछ भी नहीं सर, गवर्नेंस का द वे गवर्नमेंट वर्क्स। तो जाहिर बात है वे जब धीरे धीरे हमने बताया ओवर द पीरियड ऑफ टाइम द वे हैज चेंज्ड। शुरू में हमने बताया कि ढोल बजा करके करते थे। ढोल बजाने का मतलब होता था कि लोग उस थोड़ा ध्यान मग्न हो जाते, अच्छा कुछ होने वाला है, कोई अनाउंसमेंट होने वाला है। अनाउंसमेंट का मतलब देयर आर सम इंफॉर्मेशन आर देयर व्हिच इज गोइंग टू बी शेयर। तो जमा हो गए लोग, अच्छा इंफॉर्मेशन आ गया कि राजा साहब। बाद में हम अखबार के थ्रू देने लगे, कुछ भी, और देयर आर सेवरल मीडियास, और भी मीडिया थे। अब हम लोगों ने सर यूज किया है क्या कि अभी भी कॉलेज में हम ट्रेडिशनल मीडिया भी यूज करते हैं टू शेयर द इंफॉर्मेशन, एज वेल एज अब हम सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं।
आईसीटी का इस्तेमाल करते हैं, जिसका इस्तेमाल करके हम इफेक्टिवली इंफॉर्मेशन को क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। बाय डूइंग ऑल दीज थिंग्स द होल प्रोसेस ऑफ गवर्नेंस दैट इज नोन एज ई गवर्नेंस बिकम्स मोर प्रोडक्टिव एंड मोर इफेक्टिव। हो जाता है या नहीं सर? ई गवर्नेंस जो है, अगर आईसीटी का इस्तेमाल करते हैं हम गवर्नेंस के लिए, तो द होल प्रोसेस बिकम्स मोर इफेक्टिव एज वेल एज मोर इफिशियंट। ऐसा हो जाता है या नहीं हो जाता है सर, बताइए। जी सर। होता सर, उससे अच्छी तरीके से आदमी तक सूचनाएं पहुंच जाती हैं। एग्जैक्टली तो यही बस यही सर प्रोसेस ई गवर्नेंस है, इसी को हम लोग सर क्या कहते हैं, ई गवर्नेंस। नाउ आई एम कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड सर। अब देखिए यही जो बातें हमने आपसे कही थी, ये सारी बातें यहाँ पर लिखी हुई जो अब तक डिस्कस कर रहे थे अबाउट ई गवर्नेंस डेफिनेशन। अब अगर आपसे ई गवर्नेंस को डिफाइन करने को क्या कह सकता है, तो आप बोल सकते हैं सर ई गवर्नेंस में कुछ भी नहीं होता है। गवर्नेंस प्रोसेस में अगर हम लोगों ने आईसीटी का इस्तेमाल किया, देन द होल प्रोसेस ऑफ गवर्नेंस बिकम्स मोर एफिशिएंट, more transparent, more productive, and the reach has increased, and sharing information becomes easier. And so these are basically the advantage of e-governance. So देखिए सर यहाँ पर क्या होता है कि e-governance is the use of ICT in organizations. Organizations may be any organization, maybe academic organization, maybe a business organization, maybe a political organization. Political organization means country or anything else. So e-governance is the use of ICT in organization to provide efficient, transparent, and timely delivery of services and information to all the stakeholders to improve work efficiency and to promote democratic values, as well as regular framework that facilitates information intelligence and foster knowledge. That is the whole crux of these things. So in simple words अगर आप define करना चाहें सर, तो जब भी हम गवर्नेंस प्रोसेस में आईसीटी का इस्तेमाल करते हैं, then the whole process is known as e-governance, and by using e-governance the whole process becomes efficient, transparent, and productive. That is the whole story of e-governance. तो सर हम समझ रहे हैं कि e-governance भी समझ में आ गया, गवर्नमेंट भी समझ में आ गई होगी बातें सर। गवर्नेंस क्या होता है, e-governance क्या होता है, स्टेक होल्डर, यहां तक सर क्लियर है? जी सर। चलिए हम लोग आते हैं सर अब आगे, नेक्स्ट स्लाइड पर लोग देखते हैं कि क्या है। अब ई गवर्नेंस की मीनिंग है, जितनी भी बातें अभी हमने आपसे की, आप आपको देख सकते हैं यहाँ पर समराइज कर दिया उसको। इट इज एप्लीकेशन ऑफ, हमने बताया आपको ई गवर्नेंस क्या है सर, इट इज एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी इन द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट फंक्शनिंग। जो गवर्नमेंट की फंक्शनिंग है, जिसके थ्रू आप इंफॉर्मेशन पहुंचाते हैं अपने सिटीजन्स तक या स्टेक होल्डर्स तक, उस प्रोसेस में अगर आप आईसीटी का इस्तेमाल कर रहे हैं, देन इट विल बी नोन एज ई गवर्नेंस। इट डिपिक्ट्स द यूटिलाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी टू ईज द ऑपरेशन एंड डिसबर्समेंट ऑफ गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन। तो अगर आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं कि ताकि ये ऑपरेशन आसान हो जाए और बहुत आसानी से सूचनाएं लोगों तक पहुंच सकें, देन द प्रोसेस विल बी नोन एज ई गवर्नेंस। ये सब बातें सर हमने आपसे अभी की हैं, तो यही सारी विचारें लिखी हुई सर, ये भी हम आपसे कर चुके हैं। ई गवर्नेंस सिंपली डिफाइंड इज यूजिंग आईसीटी सॉल्यूशंस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग द रीच एंड क्वालिटी ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज टू द सिटीजन। तो इसमें सर ई गवर्नेंस क्या है, सिंपली डिफाइन कि हम जो आईसीटी का इस्तेमाल करते हैं किस काम के लिए, फॉर शेयरिंग द इंफॉर्मेशन और फॉर डिलीवरिंग द सर्विसेज टू द सिटीजन्स और द स्टेक होल्डर्स, व्हाटएवर यू मे कॉल इट। अब देखिए सर इस चीज को थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि हाउ ई गवर्नेंस हेल्प्स। बेसिकली ई गवर्नेंस एज एन इनेबलर एंड फैसिलिटेटर ऑफ गुड गवर्नेंस। कहने का मतलब है, देखिए गवर्नेंस हम लोग पहले से भी कर रहे थे, और गवर्नेंस पहले बताया कि सदियों से चला रहा गवर्नमेंट भी था और गवर्नेंस का प्रोसेस भी था। अभी हमने आपसे जिक्र किया था कि अगर गवर्नमेंट ठीक से काम करती है, ठीक से काम करने का मतलब है जो सर्विसेज है, इंफॉर्मेशन है, जनता तक ठीक से पहुंच रही हो, तो हम लोग बोलते हैं इट इज गुड गवर्नेंस। और अगर उस गवर्नमेंट का रवैया से मेरा मतलब है कि अगर सूचनाएं ठीक से नहीं पहुंच रही हो, सर्विसेज जनता तक ठीक से नहीं पहुंच रही हो, फैसिलिटीज उनको ठीक से नहीं मिल रही हो, तो हम लोग कह देते हैं कि इट इज नॉट गुड गवर्नेंस एंड बैड गवर्नेंस है। यही तो है सर डेफिनेशन गुड गवर्नेंस एंड बैड गवर्नेंस का। सर जी ट्राई टू बी इंटरैक्टिव, थोड़ा सा हाँ ना में कुछ जवाब दीजिएगा तो मुझे आसानी होगी, है ना सर? जी सर जी। जी सर। अच्छा अब देखिए सर हम एक यहाँ से देखते हैं कि मान लीजिए ड्यू टू एनी रीजन, हम एक गवर्नमेंट है, एक संस्था चला रहे हैं, मे बी कॉलेज, मे बी यूनिवर्सिटी चला रहे हैं, किसी वजह से हम अच्छा गवर्न नहीं कर पा रहे हैं, तो ठीक है हमारा गवर्नेंस अच्छा नहीं है, यानी बैड गवर्नेंस है। अब सर अगर हमने ठीक है हमने किसी कंसल्टेंट को हायर किया और लोगों से मशवरा किया कि भाई
जरा हमारा सिस्टम को चेक करके बताओ कि कहाँ हमसे खराबी हो रही है, जो हम लाख कोशिश के बाद भी अच्छा गवर्नेंस नहीं दे पा रहे हैं अपने स्टूडेंट्स को, अपने टीचर को, यानी अपने स्टेक होल्डर्स को। तो खैर उस कंसल्टेंट ने आपके सिस्टम को स्टडी किया और बताया कि भाई बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बहुत सी चीजें आपने ऑटोमेट नहीं किया हुआ है, बहुत से प्रोसेस आपने ऑटोमेटिक नहीं किया है, कंप्यूटर का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, आईसीटी का, जिसकी वजह से आपकी गवर्नेंस इंप्रूव नहीं कर रही है। तो बोला अच्छा ठीक है, तो हम अगर आईसीटी का इस्तेमाल करें गवर्नेंस में तो हमारा प्रोसेस ठीक हो जाएगा। बोला हाँ आप करके देखिए। तो ई गवर्नेंस का इस्तेमाल किया सर। तो देखिए सर क्या उन्होंने कहा, उनसे सजेशन दिया कंसल्टेंट ने कि देखिए ठीक है आपका गवर्नेंस बहुत अच्छा नहीं है, आप इस्तेमाल करिए किसका सर, ई गवर्नेंस का। तो देखा गया कि हाँ ई गवर्नेंस का हमने इस्तेमाल किया, यानी आईसीटी का अगर हमने इस्तेमाल किया फॉर प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू आवर स्टूडेंट्स, आवर टीचर्स, और फॉर डिलीवरिंग वेरियस काइंड ऑफ सर्विसेज, देन इट इंप्रूव्स द ओवरऑल process of governance, means we achieve good governance. So if we are not having good governance, by using e-governance we can achieve good governance. यहां तक सर क्लियर है ये बात कि हम ई गवर्नेंस का अगर इस्तेमाल करेंगे तो गुड गवर्नेंस होता है। जैसे अभी आपने बताया सर कि देखिए ना, जी सर। हम लोग अभी सिर्फ नोटिस बोर्ड पे अगर नोटिस चिपका देंगे तो फादर को या स्टूडेंट को या कंपनी को देखने के लिए कहां पर आना पड़ेगा, आपके कॉलेज में विजिट करना पड़ेगा, आपके नोटिस बोर्ड तक जाना पड़ेगा, उसके लिए आपका कॉलेज खुला हुआ होना चाहिए। अच्छा कॉलेज खुलने की टाइम होती है सुबह 9 बजे से शाम के 5 बजे तक, कोई आदमी रात के 9 बजे देखना चाहता है तो नहीं देख पाएगा। सो दीज आर द ऑल प्रॉब्लम्स विद मैनुअल, आई मीन टू से मैनुअल गवर्नेंस। लेकिन अगर आपने जैसा कहा व्हाट्सएप पे भेज रहे हैं, ईमेल का इस्तेमाल कर रहे हैं, या जैसा कि आपने कहा कि नहीं सर हम तो वेबसाइट पे डाल देते हैं वो सारी सूचनाएं, तो इट विल बी अवेलेबल रेडिली to anybody, nobody will need to visit your college, आने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने घर में बैठे बैठे अपने मोबाइल से देख लेगा इंफॉर्मेशन को, और जब चाहे तब देख लेगा। 24/7 अवेलेबल है, उसमें दिन होना रात होना या कॉलेज का खुला होना जरूरी नहीं है। तो ओवरऑल गवर्नेंस प्रोसेस इंप्रूव हो जाता है या नहीं सर आईसीटी के इस्तेमाल से, ये बताइए। एक एग्जाम्पल मैंने आपको लिया, होता है सर या नहीं होता है? यस सर, है हाँ ना, होता मैंने है। एक हाँ यस प्लीज मैम, क्या बोलना चाह रहे बोलिए मैम। हाँ होता है, इम्प्रूव होता है। एग्जैक्टली तो इंप्रूव हो गया तो गुड गवर्नेंस हो गया। अच्छा ठीक है, बोलिएगा नहीं सर हम तो मैनुअली बहुत अच्छा गवर्न कर ही रहे हैं ऑलरेडी, तो हमको ई गवर्नेंस की क्या जरूरत है। होता है, देखिए आप गुड गवर्नेंस कर रहे हैं तो देयर आर ऑलवेज चांस फॉर इंप्रूवमेंट, है ना, इंप्रूवमेंट के चांस ऑलवेज होते हैं। तो ठीक है आप अच्छा गवर्न कर रहे थे, आपकी टीम बहुत अच्छी थी और अच्छा कर रही है, लेकिन अगर आप देखिएगा तो जो मैनुअल गवर्नेंस आप कर रहे थे उसमें अगर आपने आईसीटी का इस्तेमाल किया तो यू कैन फर्दर इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ योर गवर्नेंस। तो देखिए सर ये वाला पोर्शन जो है, इवन आप यू आर डूइंग गुड गवर्नेंस, अगर आप यूज करते हैं गवर्नेंस प्रोसेस ई गवर्नेंस, देन यू कैन फर्दर improve the governance process. You can achieve good governance, better governance, best governance, like that. So I hope this is very clear to you, sir. This diagram clear है sir? क्या लिखा हुआ सर? गवर्नेंस आउट टू बी अलाइन टुवर्ड्स गुड गवर्नेंस। गवर्नेंस का मतलब ये होता है क्या करना सर, गवर्नेंस आउट टू बी अलाइंड टुवर्ड्स गुड गवर्नेंस। हमको ऑलवेज गुड गवर्नेंस अचीव करना है, मींस हैप्पीनेस। गुड गवर्नेंस मींस हैप्पीनेस फॉर ऑल हु आर ऑल दे आर द स्टेक होल्डर्स बेसिकली। तो अगर स्टेक होल्डर खुश है, उनको अच्छा सर्विस मिल रहा है, तो इसका मतलब है आपका गवर्नेंस अच्छा है। और अच्छा होने के लिए हमने देखा कि अगर आईसीटी का इस्तेमाल करते हैं यानी ई गवर्नेंस का इस्तेमाल करते हैं, दे आर ऑलवेज बाउंड टू लीड, और दे आर ऑलवेज बाउंड टू लीड टू गुड गवर्नेंस। गुड गवर्नेंस आपको मिलता है। अच्छा तो अब हम लोगों ने सर देखिए थोड़ा सा आगे चल के देखते हैं। हाँ सर एक सर्विस डिलीवरी मॉडल आपको थोड़ा सा करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं सर। अच्छा हम लोगों ने देखा कि कैसे हम शेयर करते हैं इंफॉर्मेशन विद द स्टेक होल्डर, हमने अभी यहाँ तक सीमित रखा था। अच्छा अब सर्विस डिलीवरी अगर करना है, गवर्नमेंट का दूसरा काम क्या है सर, कि गवर्नमेंट प्रोवाइड्स not only provide certain information to their stakeholders, but they also provides or to also deliver certain services to their stakeholders. तो अब कौन कौन से स्टेक होल्डर होते हैं, आप सर्विस कैसे प्रोवाइड किया जाता है, सबके लिए अलग अलग तरीके होते हैं सर। तो प्राइमरी डिलीवरी मॉडल्स ऑफ ई गवर्नेंस कैन बी डिवाइडेड इनटू दीज कैटेगरीज। पहला सर कहलाता है मॉडल G2C, जिसको कहते हैं गवर्नमेंट टू सिटीजन। तो देखिए सर अगर गवर्नमेंट को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है सिटीजन को, या कोई सर्विस प्रोवाइड कर रही है, देन दैट सर्विस मॉडल विल बी नोन एज G2C। जैसे देखिए सर हम लोग पासपोर्ट सेवा की बात करते हैं, तो गवर्नमेंट क्या कर रही है सर, गवर्नमेंट एक सेवा प्रदान कर रही है जिसके तहत सिटीजन को क्या मिल सकता है, पासपोर्ट मिल सकता है। तो यहाँ गवर्नमेंट और सिटीजन यानी गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग सर्टेन फैसिलिटीज और डिलीवरिंग सर्टेन सर्विसेज टू देयर सिटीजन, देन दिस मॉडल विल बी नोन एज
G2C, गवर्नमेंट टू सिटीजन। इज ओके सर, यहाँ तक क्लियर है सर? इस तरह के सेवा को हम लोग क्या बोलते हैं? गवर्नमेंट टू सिटीजन। अब देखिए जी सर, सर। एक सेवा कहलाती है गवर्नमेंट टू बिजनेस। से फॉर एग्जाम्पल, आप जस्ट लाइक अंबानी, अडानी, टाटा, बिरला, यू आर ऑल्सो ए बिजनेसमैन। आप अपने इलाके में या कहीं भी एक बिजनेस हाउस खोलना चाहते हैं, एक इंडस्ट्री ओपन करना चाहते हैं, तो क्या कहीं भी गए, मैदान में जगह लिया और इंडस्ट्री ओपन कर लिया, ऐसा कर सकते हैं आप या नहीं कर सकते हैं? सो बताइए। आपके पास अगर पैसा हो, कहीं भी गए, जमीन खरीदा, बड़ा सा इंडस्ट्री बना लिया, ऐसा कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं सर? बताइए। कर सकते हैं सर। नहीं कर सकते हैं। उसके लिए पहले क्या करना पड़ेगा सर? आपको गवर्नमेंट से लाइसेंस क्या लेना पड़ेगा। हाँ, लाइसेंस 10 तरह की चीजें है ना। गवर्नमेंट आपको पहले परमिट देती है, लाइसेंस देती है ये काम करने की, है ना, कि इस इलाके में ये काम कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि यहाँ पर हमने आपको बताया था कि जो इंडस्ट्री पीपुल है वो भी क्या है सर? स्टेक होल्डर्स हैं गवर्नमेंट के केस में। तो यहाँ गवर्नमेंट अपने स्टेक होल्डर को, जो कि इस केस में बिजनेसमैन है या इंडस्ट्रियलिस्ट है, उनको भी एक सेवा प्रदान कर रही है। किस तरह का सेवा या किस तरह की? कि दे आर प्रोवाइडिंग देम द नेसेसरी परमिशंस, नेसेसरी लाइसेंस, necessary permits to start their business and even facilities. They are providing certain facilities to the business houses. कम रेट पे उनको बिजली दे रही है, बहुत सारे काम करते हैं, कम दाम पे जमीनें देती हैं। lot of services are there which are provided by the government to the business houses. तो यहाँ पर देखिए सर, जो सेवा गवर्नमेंट जो है दे रही है यहाँ पर बिजनेस हाउस को, और जो ऊपर वाला सेवा हमने बताया था गवर्नमेंट टू सिटीजन्स, दोनों में अंतर है सर, देखिएगा, है ना। तो इसके लिए एक अलग सर्विस मॉडल होता है ई गवर्नेंस केस में। तो इस तरह के सर्विस को हम लोग बोलते हैं G2B, जहां पर गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग सर्टेन काइंड ऑफ सर्विसेज टू द बिजनेसमैन, टू द इंडस्ट्री पीपल, है ना। देन दिस इज नोन एज G2B। अब एक अनदर तरह की सेवा होती है जिसको हम लोग कहते हैं गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट का मतलब होता है सर कि एक गवर्नमेंट ऑफिस दूसरे गवर्नमेंट ऑफिस को कोई सेवा अगर प्रदान कर रही हो, देन इट विल बी नोन एज गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। मैं एक एग्जांपल देता हूं सर आपको कि बार बार मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं टू इशू द पासपोर्ट, इसलिए कि ज्यादातर लोग इससे सर वाकिफ होंगे कि पासपोर्ट कैसे बनता है। बेसिकली पासपोर्ट कैसे बनता है सर, एक प्रोसेस में थोड़ा सा 1 मिनट में आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, फिर आगे बढ़ेंगे। पासपोर्ट बनाने का प्रोसेस ये होता है कि आपके लोकेलिटी में पहले एक पासपोर्ट ऑफिस हुआ करता था सर, कहीं भी होता होगा एक पासपोर्ट ऑफिस, है ना। वहां आपको जाना पड़ता था, एक फॉर्म मिलता है, उस फॉर्म को लेकर के आइए, फिलअप करिए, उसके साथ अपना फोटोग्राफ लगाइए, नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स लगाइए और जाकर के उस काउंटर पे जमा कर दीजिए पासपोर्ट ऑफिस में। उसके बाद उस डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन होती है, चेकिंग होती है। उसके बाद क्या करते हैं, इफ एवरीथिंग इज फाउंड करेक्ट, सब चीजें ठीक ठाक अगर हुई, तब वो क्या करता है पासपोर्ट ऑफिस, आपके नियरेस्ट पुलिस स्टेशन को भेज देता है कि जरा सा इसका चेक करिए तो इनका पुलिस में क्रेडेंशियल ठीक ठाक तो है, कोई इनके खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज तो नहीं है। ये करने के लिए भेज, यानी पुलिस वेरिफिकेशन के लिए या पुलिस क्लियरेंस के लिए भेज देते हैं आपके नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में। अच्छा, आप पुलिस स्टेशन में जाके आपके घर पे कभी आते हैं, पूछताछ करते हैं या उनके अपने रिकॉर्ड को देखते हैं, बोले नहीं नहीं बड़ा साफ सुथरा आदमी है, इसके खिलाफ किसी भी तरह का कोई मुकदमा दर्ज नहीं है और ना ही कभी किसी आपराधिक मामले में ये लिप्त रहे हैं। इस तरह का एक रिपोर्ट लिख करके वो फिर भेज देता है कहां पर सर, पासपोर्ट ऑफिस में। तो यहाँ देखिए सर, 2 गवर्नमेंट के ऑफिस हैं, एक पासपोर्ट ऑफिस है और एक पुलिस स्टेशन है। दोनों गवर्नमेंट के ऑफिस हैं और ये दोनों आपस में कुछ इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान कर रहे हैं। देन दिस मॉडल इज नोन एज G2G। जो हम लोग का पासपोर्ट ऑफिस है सर, वो आता है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के अंडर में। जो पुलिस स्टेशन है वो आता है गृह मंत्री के अंदर में, यानी मिनिस्ट्री ऑफ इंटरनल अफेयर के अंदर में आता है। तो यहाँ पर देखिए 2 गवर्नमेंट के ऑफिसेज which comes under Ministry of External Affairs and another office which comes under the Ministry of Internal Affairs, they are exchanging certain sort of information with each other, then it is known as G2G। मॉडल समझ में आ गया सर, इसको G2G बोलते हैं। क्लियर है सर या नहीं? बताएं सर, बताएं, कुछ बोलेंगे तो बात करने में आसानी होती है। Yes, sir, it is clear. ठीक है। Another thing is their government to employees. Sometimes the government is providing certain kind of services or facilities to their employees. कभी आपका भत्ता बढ़ा देते हैं सर, DRNS भत्ता होता है ना, महंगाई भत्ता बढ़ गया, या किसी को जो पेंशन भोगी है उनके पेंशन का रेट बढ़ गया, कभी आपकी सैलरी बढ़ जाती है और तरह तरह की चीजें होती हैं। कभी बोनस, किसी कंपनी को, किसी कंपनी में लोग काम कर रहे हैं प्राइवेट कंपनी में, तो देयर इज ए प्रोविजन फॉर बोनस। अगर उनको बहुत लाभ हुआ उस सब, तो अपने लाभ का कुछ हिस्सा अपने एम्प्लॉय को वो लोग देते हैं। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग certain kind of service or certain kind of services to their employees. Employees means to their stakeholders. So then this model will be known as G2
ई, इसको हम लोग कहते हैं सर सर्विस डिलीवरी मॉडल। तो आपसे अगर कुछ पूछे कि G2C का एग्जांपल बताइए, तो आप G2C का एग्जांपल क्या बताएंगे सर? कि पासपोर्ट सेवा है, टैक्स फाइलिंग रिटर्न्स है, जो गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है अपने सिटीजन को। इवन राशन के दुकान जो हैं, यहाँ पर क्या हो रहा है? गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग सर्टेन, और गवर्नमेंट इज डिलीवरिंग सर्टेन सर्विसेज टू देयर सिटीजन। राशन का दुकान, जो राशन जहाँ पर या बीपीएल सेवा में कम दाम में जहाँ पर राशन मिला करता है, फूड ग्रेन्स मिला करते हैं, तो ये सब सेवाएं किसके अंदर में आएंगी सर? गवर्नमेंट टू सिटीजन में। दूसरा है सर गवर्नमेंट टू बिजनेस। मैंने एग्जांपल दिया कि अगर आप एक इंडस्ट्री खोलना चाहते हैं तो आपको बहुत तरह की सेवाएं अलॉन्ग विद द परमिशन और लाइसेंस गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, कि कम रेट में आपको बिजली देती है या कम रेट में जमीनें देती हैं, सो दैट द पीपल ऑफ दैट रीजन में बी बेनिफिटेड फ्रॉम योर इंडस्ट्री। इसी तरह से गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एक एग्जांपल लेकर भी मैंने बताया कि पासपोर्ट ऑफिस एक गवर्नमेंट का ऑफिस है, पुलिस डिपार्टमेंट एक अलग ऑफिस है। इन दोनों ऑफिस जो गवर्नमेंट के हैं आपस में एक दूसरे से अगर कुछ आदान प्रदान कर रहे हैं सूचनाओं का, तो देन इट विल बी नोन एज G2G। और तीसरा मॉडल जिसको हम लोग कहते हैं सर G2E मॉडल। यहां तक सर क्लियर है? इन सब चीजों को जानने के बाद सर हम आगे जो डिस्कशन करने जाते हैं वो थोड़ा समझना क्या हो जाएगा सर? आसान हो जाएगा। अब हम लोग सर कुछ बात करते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी लेड ट्रांसफॉर्मेशन गवर्नमेंट स्टोरीज इन इंडिया। तो हम लोग सबसे पहले सर देखिएगा कि यही एग्जाम्पल की बात करते हैं। जो पहला है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर का एक सेवा है, यानी गवर्नमेंट एक सेवा प्रदान करती है जिसको हम लोग बोलते हैं पासपोर्ट सेवा। तो जो लोग पासपोर्ट पहले बना चुके हैं 10-12 साल 15 साल पहले, उनको पता होगा कि पहले पासपोर्ट कैसे बनता था। तो मैं सर आपको बता देता हूं कि पहले पासपोर्ट जो बना करता था, तो सर एम आई ऑडिबल? आप लोग सुन पा रहे हैं सर? जी सर। जी सर। तो सौम्या घोष जी या इसमें से कोई भी एक आदमी हमें बताइए कि आज से 10-15 साल पहले पासपोर्ट कैसे बना करता था, बताइए आप। सर जो क्षेत्रीय कार्यालय होता था पासपोर्ट ऑफिस का, वहाँ आवेदन करना होता था सर। वेरी गुड सर। तो वो क्षेत्रीय कार्यालय हो सकता है आपके घर से मे बी 60 किलोमीटर अवे फ्रॉम योर होम, ऐसा होता था सर? हो सकता है ना क्षेत्रीय कार्यालय? जी सर, हमारे वहाँ से सर 100 किलोमीटर दूर था। देखिए 100 किलोमीटर दूर है सर। सर आप बरेली में ऑनलाइन सर। रहिएगा सर, है ना? तो आप देखिए कि यहाँ से 100 किलोमीटर दूर आप जाते थे, ठीक है सर? तो पहले ये होता था कि आप अपने क्षेत्रीय कार्यालय या रीजनल ऑफिस में गए, जिसको पासपोर्ट ऑफिस हम लोग बोलते थे, मे बी 100 किलोमीटर, मे बी 60 किलोमीटर, मे बी 50 किलोमीटर अवे फ्रॉम योर होम। आप वहां पर गए, काउंटर से आपको एक फॉर्म मिलता था जो कि 8-10 पेज का फॉर्म होता था सर। वो फॉर्म लेकर के आप आ गए अपने घर। आप घर पे आने के बाद इत्मीनान से आप उसको भरते थे। एंड सम टाइम द फॉर्म इज सो कॉम्प्लेक्स कि आप खुद से भर भी नहीं पाते हैं, आपको किसी वकील की या किसी लॉयर की मदद लेनी पड़ती थी भरने के लिए। चलिए नहीं भी लिया, आपने भर लिया उस फॉर्म को। भरने के बाद अपना फोटोग्राफ लगाया, नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स लगाए, जो भी उसमें मांगा जा रहा है वो सब लगाने के बाद फिर आपको अपने क्षेत्रीय कार्यालय में जाना है। इट इज योर सेकंड विजिट नाउ। आप काउंटर पे गए, वहां पर देखिएगा आपसे पहले 5 लोग लाइन पे खड़े हुए हैं, तो आप भी लाइन पे क्यू पे खड़े हो गए। 5वां नंबर आपका है। पहले एक का क्लियर हुआ, दूसरे का हुआ, 5वां नंबर आपका आया। काउंटर पे पहुंचे, 1 घंटे के बाद आपने फॉर्म दिया। जो अधिकारी वहां पर काउंटर पे बैठा हुआ, उसने आपके फॉर्म का निरीक्षण किया। इंस्पेक्शन करने के बाद उन्होंने बताया, अरे साहब इसमें तो ये 2 फॉर्म आपने लगाया ही नहीं, 2 चीजें और लगनी थी, जिसमें आपका इनकम सर्टिफिकेट लगना था, एक और कागज आपका 10th का सर्टिफिकेट लगना था। पता चला ली है, दोनों तो मेरे पास अब है नहीं। फिर अब आप क्या करेंगे सर? लौट करके आपको कहाँ आना पड़ेगा फिर? घर सर। यहाँ अब लौट करके आप फिर घर आते हैं। फिर वो दोनों डॉक्यूमेंट आपने तलाशा, जो भी खोज की विचार हुआ। Once after finding all these documents, we attach the document, and again, this is the third time. Again, next day you visit to the passport office. So it is your third visit now. चलिए अब थर्ड विजिट वहां पर पहुंचे, 100 किलोमीटर पहुंच गए, लाइन पे लगे। इस बार आपका बहुत लकी थे, आप तीसरा नंबर था। 2 लोगों के बाद आपका नंबर आ गया। उसके बाद जब वहां अधिकारी बैठे हुए थे, आपका नंबर जब उन्होंने चेक किया, बोला हाँ ना वेरी गुड, नाउ यू हैव ऑल द, उन्होंने आपका डॉक्यूमेंट वहां रख लिया और आपको एक नंबर लिख के, रसीद आपको लिख के दे देते, चलिए ये हो गया रसीद। चलिए अब द होल थिंग इज नाउ ब्लैंक। अब आपको कुछ पता नहीं है कि उस आपके एप्लीकेशन के साथ क्या हुआ। इंटरनल प्रोसेसिंग उनकी चलती रहती थी कि वो आपके एप्लीकेशन को लिया, पासपोर्ट ऑफिसर ने देखा, जांच किया, उसके बाद उसने पुलिस को भेज दिया। पुलिस वाले ने, अब जब पुलिस को भेज दिया वहां से, तो हो सकता है 2 महीने के बाद एक पुलिस अधिकारी आपके घर पे आ रहा हो, तब आपको पता चलता अच्छा अच्छा हाँ हमारा पुलिस वेरिफिकेशन शुरू हो रहा है। तो पुलिस वाले ने आके आपसे कुछ पूछताछ की, हाँ भाई बताइए सब कुछ ठीक है, ये है वो है। आपने उनको बता दिया, पता चला सभी चीजें ठीक ठाक हैं। तो पुलिस ने एक रिपोर्ट लगाई जिसमें लिखा कि नहीं साहब युगेंद्र जी का या जो भी है सौम्या घोष के सारी चीजें ठीक है और ये लोग बहुत अच्छे आदमी है, ऐसा लिख करके उन्होंने एक रिपोर्ट फिर पासपोर्ट ऑफिस भेज दिया। तो ये आने जाने की प्रक्रिया में ही काफी दिन लग जाता था। 3 महीने के बाद, 4 महीने के बाद सब कुछ जब ठीक हो गया, तो देखिएगा कि गांव का जो आपका पोस्टमैन है वो आपका लेकर के वो चला रहा क्या, बहुत अगर आप लकी हैं तब
आपका क्या लेकर के चला आया सर? पासपोर्ट आपके पासपोर्ट। घर में लाके डिलीवर कर दिया। सो दिस वाज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग ए पासपोर्ट इश्यूड 10 years और 20 years बैक, जहां ज्यादातर चीजें सर मैनुअल थी। लेकिन अब देखिए सर, विद द यूज ऑफ आईसीटी, अब इस पूरे प्रोसेस में जो गवर्नेंस का प्रोसेस है, वहां भी गवर्नेंस हो रहा था, पासपोर्ट इशू हो रहा था वहां भी, लेकिन बहुत मुश्किल था, वो गवर्नेंस बहुत अच्छा नहीं था। अब देखिएगा सर, इसी प्रोसेस में अगर आप आईसीटी का इस्तेमाल करते हैं तो देखिए कि चीजें कैसे बदल जाती हैं। तो अब नाउअडेज क्या हो गया है सर, कि अभी अगर आपको पासपोर्ट इशू कराना है, कहीं आने जाने की जरूरत नहीं है, यू सिंपली विजिट द वेबसाइट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। तो घर बैठे बैठे आप मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के वेबसाइट पे जाइए, वहां पर लिखा हुआ है कि एप्लीकेशन फॉर्म फॉर इशूइंग पासपोर्ट, उस एप्लीकेशन फॉर्म को क्लिक करिए। वहां पर बोलेगा कि अच्छा हाँ ठीक है, आप डिटेल भरिए। तो अपना डिटेल भरना आपने शुरू कर दिया, अपना नाम पता जो भी मांगे जाते हैं एंट्रीज भर दिया। वहां बोला कि ये डॉक्यूमेंट आप अटैच करिए, आपने डॉक्यूमेंट अटैच कर दिया, सब चीजें ओके हैं, बोले यस, आप सबमिट कर दीजिए। तो घर बैठे बैठे आपने सर क्या कर दिया, यहाँ से सबमिट कर दिया। जैसे ही सबमिट करेंगे आपको एक ट्रैकिंग नंबर मिल जाएगा। मान लीजिए ट्रैकिंग नंबर है 1 2 3 4, एक ट्रैकिंग नंबर आपको मिल गया। अब ट्रैकिंग नंबर विल हेल्प यू टू ट्रैक द करंट स्टेटस ऑफ योर एप्लीकेशन। यूजिंग दैट नंबर यू कैन ऑलवेज चेक कि हमारा एप्लीकेशन अभी किस स्टेज पे है, क्या प्रोसेसिंग हो रहा है, कहाँ है, ये सारी चीजें आपको पता चलती रहेंगी। खैर, तो अब देखिए सर कि इनिशियल डेज में जाना पड़ता था, 3 बार आपको जाना पड़ा था क्षेत्रीय कार्यालय, रीजनल ऑफिस। एक बार जमा करने के लिए जाना पड़ा, एक बार कुछ गलतियां हो गई उसको ठीक करने के लिए जाना पड़ा। अच्छा, आप ब्लैंक है, आपको कुछ पता भी नहीं चल रहा, लेकिन यहाँ पर फिर आपको 15 दिन के बाद आपको पता चला कि हमें देखना है स्टेटस। तो आपने जैसे ही टाइप किया मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, चेक योर स्टेटस और गिव द ट्रैकिंग नंबर, आपने 1 2 3 4 जो ट्रैकिंग नंबर दिया, जैसे ही ट्रैकिंग नंबर देंगे आपके पास पूरा स्टेटस आ जाएगा। ये देखिए पासपोर्ट ऑफिसर ने आपका देख लिया है, ये कर लिया है, एंड योर एप्लीकेशन हैज बीन सेंट टू द लोकल पुलिस ऑफिसर फॉर पुलिस क्लियरेंस। बोला अच्छा, आपको पता चल गया, अच्छा पुलिस क्लियरेंस के मेरा भी आया हुआ है। आप देख ही रहे थे कि दूसरे दिन आपका पुलिस ऑफिसर घर में आ गया, उसने आपसे पूछा वैसा बात किया, आपका रिपोर्ट लेकर के चला गया। आपने फिर स्टेटस चेक किया तो देखा पुलिस ऑफिसर ने भेज दिया है कहां पर, पासपोर्ट ऑफिस में। 2 दिन के बाद आपने चेक किया तो देखा योर पासपोर्ट इज रेडी एंड सम टाइम इट विल बी डिलीवर्ड टू यू। तो घर बैठे उसके बाद 2 दिन के बाद कुरियर वाला या पोस्टमैन जो भी है घर में ला करके आपको डिलीवर कर देता है आपका पासपोर्ट। सो नाउ बाय यूजिंग आईसीटी यू सी हियर द हाउ द प्रोसेस हैज बिकम इजियर। कितना आसान हो गया सर, सब चीजें आपके लिए आसान हो गई। गवर्नेंस का प्रोसेस इफिशिएंट हो गया। इफिशिएंट का मतलब जल्दी बन गया, आसान हो गया, प्रोडक्टिव हो गया। आपको 4 बार आना जाना पड़ रहा था, नहीं हो रहा है, तो सारी चीजें आपके लिए आसानी पैदा हो जाती हैं। इसको हम लोग कहते हैं गुड गवर्नेंस। तो आईसीटी का इस्तेमाल करने से, जिसको ई गवर्नेंस कह रहे हैं हम, तो ई गवर्नेंस के इस्तेमाल से वी ऑलवेज लीड टू और बाउंड टू लीड टू गुड गवर्नेंस। ये बात समझ में आ रही सर या नहीं समझ में आ रही है? तो हम लोग अगर अपने प्रोसेस में, गवर्नेंस प्रोसेस में आईसीटी का इस्तेमाल करेंगे तो ये आसानियां क्यों पैदा हुई सर, कि विद द पैसेज ऑफ टाइम टेक्नोलॉजी इतना रीच कर गया, टेक्नोलॉजी इतना आसानी से आप अवेलेबल है, हमारे मोबाइल फोन में है, कंप्यूटर में, एवरीवेयर है। ऑल ऑफ अस आर knowingly or unknowingly you are making use of technology। आप यूज कर रहे हैं सर बहुत तरह से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, एंड the whole process has made your life much easier, much comfortable, I mean to say। यहां तक बातें सर समझ में आ रही है नहीं समझ में आ रही सर? सो बताइए सर। जी सर, आ रही है सर। तो जितने भी प्रोसेस है सर, एक प्रोसेस यहाँ पर था, क्या गवर्नमेंट का प्रोसेस था सर, पासपोर्ट डिलीवरी, एक सेवा थी, सर्विस डिलीवरी। तो उसमें अगर आईसीटी का इस्तेमाल आपने किया तो देखिए कि द होल प्रोसेस बिकम्स मच इफिशिएंट। इफिशिएंट का मतलब जल्दी हो जाता है, प्रोडक्टिव भी हो गया सर, आने जाने की भी नहीं बचे, मैंने खर्च इजियर भी हो गया, सारी चीजें आसान हो जाती हैं ई गवर्नेंस के थ्रू। तो अगर आप आईसीटी का इस्तेमाल करेंगे अपने गवर्नेंस प्रोसेस में, सो द होल प्रोसेस विल बिकम मच इजियर। एक एग्जांपल सर हम लोग और ले लेते हैं समझने के लिए, कि हम लोग सर टैक्स रिटर्न पहले फाइल करते थे, जानते होंगे सर, 5-7 साल पहले की बात मैं कर रहा हूं अगर, तो टैक्स रिटर्न कैसे फाइल करते थे? हर साल करना पड़ता है सर, जो भी आपका इनकम होता है तो इनकम टैक्स फाइल करते हैं ना सर, रिटर्न। जी सर। तो पहले क्या होता था सर, एक सरल नाम से फॉर्म आता था, सरल है ना, नाम से जी फॉर्म सर। आता था, आप उस फॉर्म को लेते थे, फिर किसी इनकम टैक्स लॉयर के पास जाते थे, उसको भरते थे, भर करके फिर जा करके जो नियरेस्ट आपका इनकम टैक्स ऑफिस है या इनकम डिपार्टमेंट की जो ऑफिस है उसमें जाके जमा कर देते थे। अब आपने जमा कर दिया, 2 महीने 3 महीने के बाद आपके पास फिर एक नोटिस आता था कि आपने फला गलती कर दिया, धकाना कर दिया, या अगर सब कुछ सही है तो ठीक है, आपको मैंने 100 रुपया और जमा करना है, आपने इतना कम जमा किया था, या अगर और अच्छा किया तो बोले भैया आप 200 रुपया आपका रिटर्न आया है, तो एक चेक बन गया। ये प्रोसेस पहले हुआ करता था, जो कि बहुत मुश्किल था।
अब क्या हुआ सर, अब कहीं आने जाने की जरूरत नहीं है आपको। ऑनलाइन प्रोसेसिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ टैक्स रिटर्न है, तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के वेबसाइट पे जाइए, वहां पर लिखिए कि आई वांट टू फिल अप माय टैक्स रिटर्न। तो जैसे ही आप करेंगे एक फॉर्म खुल के आ जाएगा, उसमें 4 चीजें आपसे मांगी, कितना आपका साल का इनकम है, कितना टैक्स दिया है, किया हो गया। 2 मिनट के अंदर आपका टैक्स रिटर्न बन जाएगा और एक आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा कि आपका टैक्स रिटर्न इतना, आपने अगर जमा किया ज्यादा तो आपका इतना रिटर्न हो जाएगा, नहीं जमा किया ज्यादा तो ठीक है, ओके है, कम जमा किया तो आपको बताएगा कि आपको 2000 रुपया या 3000 रुपया और जमा करना है, जो भी आपकी बने। सो इमीडिएटली यू विल गेट द रिस्पॉन्स फ्रॉम ऑल दिस थिंग। सो आई मीन टू से इफ वी मेक, तो क्यों कर रहे हैं सर ऐसा, ये ऐसा कैसे हो रहा है? विद द यूज ऑफ आईसीटी। तो आईसीटी का अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो द होल गवर्निंग प्रोसेस बिकम्स मच इजियर एंड बिकम्स एफिशिएंट एंड द होल प्रोसेस बिकम्स मोर प्रोडक्टिव। By taking these two examples, is it clear, sir, that the whole process becomes efficient, easier, productive and transparent as well? Transparent का मतलब है सर कि जैसे कि पासपोर्ट के केस में था कि पुराने जमाने में आपने जमा किया, उसके बाद किसी और ने जमा किया, जिसने 1 महीना बाद जमा किया उसका पासपोर्ट तो पहले आ गया, आपका पासपोर्ट आ ही नहीं रहा, पता नहीं कहाँ दबा हुआ है फाइल। अब वो ऐसा नहीं हो सकता सर, आईसीटी का इस्तेमाल करेंगे तो आपको एक ट्रैकिंग नंबर मिल गया है, तो पहले अगर प्रोसेस होगा तो आपका होगा, आपके बाद वाले का प्रोसेस आपके बाद ही होगा। सो यहाँ पर द होल प्रोसेस बिकम्स ट्रांसपेरेंट। यहाँ पर कोई इंप्लाई गड़बड़ी नहीं कर सकता है कि नहीं बाद वाले का पहले प्रोसेस कर दें और पहले वाले का बाद में प्रोसेस करें, ऐसा नहीं होता है। सो द होल प्रोसेस बिकम्स ट्रांसपेरेंट एज वेल, और आप कभी भी अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। तो द होल प्रोसेस बिकम्स एफिशिएंट, प्रोडक्टिव एंड ट्रांसपेरेंट by the use of ICT in the governance process. So this is the whole process is known as e-governance. यहां तक सर बातें ठीक हो तो आगे बढ़ें सर हम लोग। जी सर। तो अब चलिए सर, हमें समझ में आ गया कि प्रोसेस ठीक है, सबको समझ में आ गया गवर्नेंस। हम लोग सर अब सरकार के आदमी तो है, लेकिन हम लोग यूनिवर्सिटी के बारे में बात करना चाहते हैं कि यूनिवर्सिटीज में या कॉलेजेज में हम ई गवर्नेंस का इस्तेमाल कहाँ करेंगे और अपने कॉलेज की व्यवस्था को कैसे और सुचारू रूप से चला सकते हैं। हाउ वी कैन मेक द गवर्निंग प्रोसेस ऑफ आवर इंस्टीट्यूशन मच बेटर, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ सर। तो ई गवर्नेंस इन यूनिवर्सिटीज और हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में हम क्या कर सकते हैं। तो कहीं भी सर किसी भी संस्था में हमने शुरू से बात किया है। सो इंट्रोड्यूसिंग ई गवर्नेंस इन यूनिवर्सिटी कैन ब्रिंग ट्रांसपेरेंसी, कैन मेक द होल प्रोसेस मोर इकोनॉमिकल, मेक द थिंग्स मोर एक्सेसिबल एंड इफिशिएंट इन हायर एजुकेशन। अगर आप यहाँ भी जो ई गवर्नेंस के जो फायदे हैं वो चाहे सरकार में आप यूज करिए, चाहे बिजनेस हाउस में यूज करिए, चाहे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में यूज करिए, वो फायदे आपको ऑलवेज मिलेंगे। क्या क्या फायदे हैं सर? द होल प्रोसेस बिकम्स ट्रांसपेरेंट, the whole process becomes more economical, खर्च कम हो जाता है, becomes more accessible for the stakeholder, ज्यादा से ज्यादा लोग उसको जल्दी से एक्सेस कर सकते हैं, आसानी से एक्सेस हो जाता है, and efficient हो जाता है, the whole process becomes efficient। तो ये 4 चीजें आपको हमेशा इसको मिलेंगी सर। अच्छा ठीक है सर, तो थोड़ा सा हम लोग यूनिवर्सिटी में जो क्या स्टेटस है ई गवर्नेंस का, थोड़ा सा इसको पहले जान लेते हैं सर कि व्हाट इज द प्रेजेंट स्टेटस ऑफ ई गवर्नेंस इन इंडियन यूनिवर्सिटी। तो आप देखिएगा सर, ये ब्लू लाइन में कुछ लिखा हुआ है, इसको आप पढ़ लीजिएगा, मैं बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, यहाँ पे लिखा हुआ आप देखते जाइए, पढ़ते जाइए। वेदर यूनिवर्सिटी हैव गॉट, पहला सवाल ये था सर कि वेदर यूनिवर्सिटी हैव गॉट वेल डिफाइंड पॉलिसी फॉर ई गवर्नेंस और नॉट। देखिए सर, आप अगर आप चाहते हैं कि हम अपने कॉलेज में या इंस्टीट्यूशन में ई गवर्नेंस का इस्तेमाल करना चाहते हैं, इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, तो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू हैव क्लियरली डिफाइंड पॉलिसी। आपको अपने, है ना, जैसे गवर्नमेंट की भी पॉलिसी बनती है, कोई भी काम करना होता है तो गवर्नमेंट पहले पॉलिसी बनाती है कि देखिए ये पॉलिसी होगा, इसी के तहत हम ये चीजें क्या करेंगे सर, आगे बढ़ेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे। So similarly, if you want to implement e-governance in your institution, in your college, then you will have to, or your administration, or your administration means government, the principal, registrar, deans, whosoever are responsible for governing that organization, they will have to define a policy for implementation of e-governance। कि देखिए साहब, हम पहले ये काम करेंगे, फिर ये काम करेंगे, स्टेप 1 में ये करेंगे, स्टेप 2 में ये करेंगे, स्टेप 3 में ये करेंगे। क्लियर कर डिफाइन पॉलिसी होनी चाहिए। बोलिएगा सर अगर डिफाइन नहीं करेंगे पॉलिसी तब क्या होगा? देखिए होता क्या है कि मान लीजिए आपने पॉलिसी नंबर 1 जो काम करना था शुरू किया इंप्लीमेंट करना, और उसके बाद गवर्नमेंट तब्दील हो गई। गवर्नमेंट तो आती जाती रहती है, बदलती रहती है, प्रिंसिपल बदल जाएगा, रजिस्ट्रार बदल गया, डीन बदल गया, हेड बदल गया, सरकारें बदल जाती हैं, तो अब क्या होगा सर? जो आने वाली सरकार है उसको तो कुछ पता ही नहीं आपने क्या किया कि नहीं किया। तो हियर इज द पॉलिसी डॉक्यूमेंट व्हिच कम्स एज रेस्क्यू। अच्छा, पॉलिसी डॉक्यूमेंट देखा क्या आपने? नहीं, पिछली सरकार ने ये किया था कि पहले हम नंबर 1 काम करेंगे, फिर 2 करेंगे, फिर 3 करेंगे, इसमें से उन्होंने 1 और 2 कंप्लीट कर लिया है। अच्छा,
तो अब हमको समझ में आता है एज पर पॉलिसी डॉक्यूमेंट हमको नंबर 3 को क्या करना है सर, कंप्लीट करना है। तो आई मीन टू से कि अगर पॉलिसी डॉक्यूमेंट होगा तो आपको इंप्लीमेंट करने में आसानी होगी, क्योंकि सारी चीजें एक दिन में इंप्लीमेंट नहीं हो जाती। इट टेक्स लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम टू इंप्लीमेंट ई गवर्नेंस in your institution. So if you have the e-governance policy, then it will be easier for you to implement e-governance in your institution. तो सबसे पहले सर एक डिफाइंड पॉलिसी होनी चाहिए। Do you agree with this thing or not सर? सबसे पहले बताइए सर, सुमाइश, आगे फिर बात करेंगे। पॉलिसी होनी चाहिए सर या नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए सर। होनी चाहिए ना, नहीं होगा अगर ना तो बताए तो प्रिंसिपल साहब चेंज कर गए। पता चला जो प्रिंसिपल साहब अभी थे वो बड़ा कंप्यूटर सेवी थे, उन्होंने कहा कि नहीं हम बहुत अच्छा करते। जो बाद में प्रिंसिपल साहब आए वो उतने कंप्यूटर सेवी नहीं है, उनकी जो है प्रायोरिटीज अलग है ना। और वो बोला तो हम नहीं करते भाई, हमको पता ही नहीं क्या है नहीं है। बोले नहीं सर, अगर पॉलिसी डिफाइंड होगी देन एवरी इनकमिंग गवर्नमेंट इज बाउंड टू फॉलो दैट पॉलिसी। और अगर कुछ लिखा ही हुआ नहीं है तब बोला उसको जो मन में आ रहा हो कर रहा, पहले वाले ने कुछ कर लिया, दूसरे वाले ने कुछ कर लिया, इस तरह से कभी इंप्लीमेंट नहीं हो पाएगा। तो खैर सर यहाँ देखा गया, सबसे पहला अध्ययन ये किया गया कि वेदर यूनिवर्सिटी हैव गॉट वेल डिफाइंड पॉलिसी। तो देखिए सर यहाँ क्या लिखा हुआ, नन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी हैव गॉट वेल डिफाइंड पॉलिसी फॉर ई गवर्नेंस। था ही नहीं, तो अगर नहीं रहेगा तो फिर काम करना मुश्किल हो जाएगा। तो कर कैसे रहे थे, दे आर ऑटोमेटिंग देयर फंक्शंस ऑन पीस मील by outsourcing it to external। बोला अच्छा, उनको लगा कि नहीं आप एग्जामिनेशन प्रोसेस को कर लीजिए, किसी ने बता दिया कि आप एडमिशन प्रोसेस को ऑटोमेट कर लीजिए, तो उन्होंने सिर्फ एडमिशन प्रोसेस में जाकर के क्या कर लिया, ऑटोमेशन कर लिया, ई गवर्नेंस लगा दिया। तो उससे कंप्लीट बेनिफिट ऑफ ई गवर्नेंस आपको नहीं मिल पाएगा। नाउ कम टू द सेकंड सर, आप सर ब्लू वाला पोर्शन पढ़ते जाइएगा, सारी चीजों को करेंगे अगर हम तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू कवर ऑल दीज थिंग्स इन 1.5 आवर। तो इन द मीन टाइम आई एम discussing, you just give a reading of the blue text। अच्छा सर, दूसरा क्वेश्चन ये था, देखा गया कि whether university have got e-governance infrastructure in place or not। चलिए सर, आपने डिफाइन करा, पॉलिसी तो बना लिया, आपने पॉलिसी बना लिया कि पहले हम ये काम ये काम का मतलब है समझने के लिए बता रहा हूं कि आपने डिसाइड किया सबसे पहले हम एडमिशन पॉलिसी को ऑटोमेट करेंगे या ई गवर्नेंस लगाएंगे, दूसरा रिजल्ट प्रोसेसिंग में लगाएंगे, तीसरा रिक्रूटमेंट प्रोसेस में लगाएंगे। इस तरह से आपने डिफाइन कर लिया पॉलिसी, ठीक है। चलिए अब बोलिए सर कि आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर भी है या नहीं ई गवर्नेंस, क्योंकि इसमें आईसीटी का इस्तेमाल होता है। तो भाई आईसीटी का अगर इस्तेमाल होगा तो क्या क्या चीजें होनी चाहिए, तो हमारे पास हार्डवेयर होना चाहिए, हार्डवेयर का मतलब कंप्यूटर होना चाहिए, कंप्यूटर सिर्फ अकेला चलता नहीं है, उससे रिलेटेड सॉफ्टवेयर होने चाहिए। बोला ठीक है, कंप्यूटर भी है, सॉफ्टवेयर भी है। अब क्या है सर, इंटरनेट की कनेक्टिविटी होना चाहिए। इंटरनेट की कनेक्टिविटी अगर आपके पास नहीं है तो आपका ई गवर्नेंस नहीं होगा। कि देखिए ना, एक स्टूडेंट अपने घर में बैठे बैठे आपका वेबसाइट देखना चाहता है, पता चला कि आपका सर्वर कनेक्टेड नहीं इंटरनेट से, तो कैसे देख पाएगा। तो उसके लिए जरूरी है कि ऑल द टाइम यू आर कनेक्टेड टू द इंटरनेट। सो फॉर दैट यू नीड ए ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी होना चाहिए। तो बोला ठीक है सर, तीनों चीज हो गया, कंप्यूटर भी है, सॉफ्टवेयर भी है और इंटरनेट का कनेक्टिविटी तो हम लोग पास रहता ही रहता है, मोबाइल फोन है। तो अब क्या सर, पता चला कि आपके क्षेत्र में जहां आप रहते हैं, ग्रामीण क्षेत्र है, वहां 8-8 घंटे लाइट ही नहीं रहती है। तो लो पता चला कि दिन में जब कॉलेज खुलने का टाइम है लाइट ही नहीं है, तो सर्वर डाउन है, अगर लाइट नहीं है तो अगर सर्वर डाउन है तो आपके पास अगर इंटरनेट एक्सेस है भी तब भी कोई काम का नहीं है, क्योंकि आप तो सिस्टम ही ऑन आपका नहीं हो पा रहा। तो उसके लिए फिर व्यवस्था करनी पड़ेगी अल्टरनेट पावर सप्लाई का, है ना। यू विल हैव टू अरेंज अल्टरनेट सोर्स ऑफ पावर सप्लाई, दैट इज नोन एज अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, यूपीएस होना चाहिए। तो जब तक लाइट गई तो यूपीएस से काम चलेगा आपका, ठीक है साहब। यूपीएस भी हमने रख लिया। बोले आपके पास कंप्यूटर भी है, सॉफ्टवेयर भी है, इंटरनेट की कनेक्टिविटी भी है, यूपीएस भी है, लेकिन सर हमारे पास ट्रेन मैन पावर नहीं है। ट्रेन मैन पावर अगर नहीं है, थोड़ा सा भी कोई खराबी आई तो पूरा सिस्टम बैठ गया, उसको ठीक करने के लिए कोई आदमी नहीं है। तो नहीं साहब, apart from software or alongside with the software, hardware, broadband connectivity, UPS, you need to have or you must have some trained manpower who will be responsible for looking after the whole system, ठीक है ना। तो ये सब कहलाते हैं सर इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये देखना पड़ेगा कि आपके पास प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर है या नहीं। स्टेटस क्या था सर, बहुत सी यूनिवर्सिटी में देखा गया कि यूनिवर्सिटी डोंट सी द नीड ऑफ क्रिएटिंग द एंटायर इंफ्रास्ट्रक्चर सिंस दे डिपेंड ऑन लॉट ऑफ आउटसोर्सिंग। बहुत से लोग क्या करते हैं कि दूर से इतना कौन झंझट करता है सर, हम कोई खरीद के एक सॉफ्टवेयर ले आते हैं और उसको इंप्लीमेंट कर देते हैं लोग। तो वैसे काम नहीं चलेगा पीडब्ल्यू में, है ना। तो आपको एक अपना इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए जो कि इस तरह से जो हमने आपको बताया। नेक्स्ट देखिए सर, हमने अभी बताया कि द क्रक्स ऑफ गवर्नेंस इज व्हाट, शेयरिंग इंफॉर्मेशन विद द क्रिएटर। हमने सबसे पहले डिफाइन किया था कि गवर्नेंस क्या है, इज द प्रोसेस ऑफ शेयरिंग इंफॉर्मेशन विद द स्टेक होल्डर। आजकल देखिएगा सर कि एक प्रथा चली है कि हम बहुत सा इंफॉर्मेशन शेयर ही नहीं करना चाहते हैं।
तो बोले अच्छा शेयर नहीं करना चाहते हैं तब तो भी ई गवर्नेंस का जो स्पिरिट है वही किल हो जाएगा, दैट इज किलिंग द स्पिरिट ऑफ ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस का या गवर्नेंस का स्पिरिट ही है टू शेयर इंफॉर्मेशन एंड टू डिलीवर सर्विसेज टू द सिटीजंस और टू देयर स्टेक होल्डर्स। अब यहाँ देखिए सर, वेदर यूनिवर्सिटी आर डिस्क्लोजिंग ऑल नॉन कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन टू प्रमोट ट्रांसपेरेंसी बाय सिक्योरिंग प्राइवेट एंड कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन। इसका अध्ययन किया गया तो पाया गया कि ठीक है, जो कुछ कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है उसको आपको शेयर नहीं करना है, लेकिन बहुत से नॉन कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन होते हैं दैट नीड्स टू बी शेयर विद द स्टेक होल्डर्स। जैसे सर हम लोग एक जिस भी संस्था में काम करते हैं उनका इंटरनल ऑडिट होता है, एनुअल ऑडिट होता है। ऑडिट का मतलब कितना पैसा आपने कमाया, कितना खर्च किया, उसका पूरा ब्यौरा होता है, इसको हम लोग इंटरनल ऑडिट बोलते हैं। तो इंटरनल ऑडिट जब हो गया तो एक ऑडिटेड स्टेटमेंट होता है, उसमें लिखा होता है कि आपकी टोटल आमदनी 10 करोड़ की है, आपने खर्च उसमें से 5 करोड़ किया, 5 करोड़ आपके पास बैलेंस है। ये तो भाई इसको पब्लिक करने में क्या दिक्कत है? आप अपने वेबसाइट पे ये ऑडिट का रिपोर्ट पब्लिक कर दीजिए। लेकिन देखिएगा बहुत सी यूनिवर्सिटी इसको पब्लिक नहीं करना चाहते हैं। तो बोले क्यों नहीं करना चाहते हैं? बोले सर अगर पब्लिक कर देंगे तो हम तो अपने स्टाफ को बहुत कम पैसा दे रहे हैं, वो देख लेगा कि अच्छा 5 करोड़ इनको बचा है तो हम लोग को क्यों पैसा नहीं देता है, फिर आंदोलन करना शुरू कर देगा, ये करना शुरू कर देगा। तो ड्यू टू एनी रीजन दे आर नॉट डिस्क्लोजिंग नॉन कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, and if you are not disclosing then you are not achieving the purpose of transparency। चीजें ट्रांसपेरेंट नहीं है, इसके मतलब ढकाव छुपाव कर रहे हैं, चीजों को ट्रांसपेरेंट नहीं रख रहे हैं। if you are not keeping the things transparent then you are killing the spirit of e-governance। e-governance सक्सेसफुल नहीं होगा। तो ठीक है सर, इस क्वेश्चन के जवाब में देखा गया कि all the universities are hiding a lot of information which is actually to be revealed। for example जैसे मैंने आपको बताया, for example everyone should know the audited accounts but the university failed to display such information। इसी तरह से और भी चीजें सर लिखी हुई हैं। In most of the cases, the academic information like eligibility, admission date, course fee, affiliation, accreditation are either not given or not updated। तो बहुत सी इंफॉर्मेशन इस तरह से अपडेट नहीं हो रही है, हो रही, तो ये सब चीजें हैं। तीसरा देखा गया सर, हम लोग अभी प्रेजेंट स्टेटस देख रहे हैं सर कि क्या स्टेटस है इंप्लीमेंटेशन का, ई गवर्नेंस। अगला देखिए सर, वेदर यूनिवर्सिटी हैव ऑटोमेटेड देयर एकेडमिक फंक्शंस लाइक एडमिशन प्रोसेस को किया है कि नहीं उन्होंने, अटेंडेंस सिस्टम को ऑटोमेट किया है कि नहीं, यानी आईसीटी का वहां इस्तेमाल कर रहे हैं कि नहीं, एग्जामिनेशन सिस्टम को किया है कि नहीं, रिजल्ट प्रोसेसिंग सिस्टम को ऑटोमेट किया है या नहीं, प्लेसमेंट सिस्टम को किया है या नहीं। तो इसमें क्या पाया गया सर? देखा गया कि डीम्ड यूनिवर्सिटीज जो होते हैं हैव ऑटोमेटेड मोस्ट ऑफ द एकेडमिक फंक्शंस बट नॉट फुल्ली। कुछ लोगों ने एडमिशन सिस्टम को कर लिया है, कुछ लोगों ने एडमिशन और अटेंडेंस सिस्टम को ऑटोमेट कर लिया है, कुछ लोगों ने एडमिशन अटेंडेंस रिक्रूटमेंट को कर लिया, बाकी लोगों ने नहीं किया है ना। यहाँ पर फुल्ली अभी तक सभी लोगों ने फुल्ली ऑटोमेटेड सिस्टम नहीं है ना, ये देखा गया। सिमिलरली सर, वेदर यूनिवर्सिटी हैव ऑटोमेटेड द स्टूडेंट फैसिलिटीज लाइक लाइब्रेरी की जो फैसिलिटी है वो ऑटोमेटेड है कि नहीं, आपकी लाइब्रेरी हॉस्टल में ऑटोमेशन है या नहीं, कि तुरंत हम देखना चाहें कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर, तुरंत कंप्यूटर बता दे, कौन कौन सा रूम खाली है तुरंत पता चल जाए, है ना, किस रूम में कौन बच्चा रह रहा है 2 मिनट में यहाँ पता चल जाना चाहिए। तो अगर आप आईसीटी का इस्तेमाल करेंगे तो इन सब चीजों को गवर्न करना बहुत आसान हो जाता है। तो देखिए हॉस्पिटल, क्लब, ऑडिटोरियम एक्सेट्रा है या नहीं। तो यहाँ पर देखा गया कि कुछ लोगों ने अपने लाइब्रेरी को किया हुआ, हॉस्टल को किया है, लेकिन बाकी चीजों को नहीं ऑटोमेट किया है, एंड सो एंड सो। अच्छा, अब आइए एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब को, है ना। एकेडमिक हम लोगों ने देख लिया था, एडमिशन, एग्जामिनेशन प्रोसेस, रिजल्ट प्रोसेस। अब एडमिनिस्ट्रेशन को देखिए कि वेदर यूनिवर्सिटी हैव ऑटोमेटेड देयर एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन लाइक एचआर, एचआर का मतलब रिक्रूटमेंट वाला फंक्शन को किया है कि नहीं, फाइनेंस एंड वेंडर जिसमें सामान खरीदा जाता है उस प्रोसेस को ऑटोमेट किया है कि नहीं किया है। तो देखा जाता है कि मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज हैव ऑटोमेटेड देयर एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन को कर लिया है, बहुत से लोगों ने नहीं किया। ये प्रेजेंट स्टेटस ब्लू टेक्स्ट में लिखा हुआ है, आप सब देख सकते हैं। Whether university have got well-defined policy for the use of social media by a stakeholder or not। तो यहाँ पर सर देखिए कि यूनिवर्सिटीज ने के पास एक पॉलिसी होनी चाहिए कि आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल करेंगे कि नहीं इन्फॉर्मेशन डिसेमिनेट करने के लिए। बहुत से लोग डरते हैं सर कि नहीं हम फेसबुक पे जाएंगे या ट्विटर पे जाएंगे, कुछ हैक हो जाता है, इन्फॉर्मेशन ये हो जाता है, बहुत से इस डर से बहुत से लोग नहीं करते हैं। अच्छा, बहुत से लोग देयर आर सेवरल अदर रीजन जिसकी वजह से वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं करते हैं। बट नाउअडेज सोशल मीडिया इज ए वेरी पावरफुल मीडिया फॉर डिसेमिनेटिंग द इन्फॉर्मेशन, जिसका इस्तेमाल करके आप इन्फॉर्मेशन बहुत लोगों तक बहुत आसानी से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं। तो हमको इसका यूज करना चाहिए इस मीडिया का, और उसके लिए एक पॉलिसी डिफाइन होना चाहिए कि देखिए साहब हमारे कॉलेज में पॉलिसी है कि ट्विटर का अकाउंट जब भी यूज होगा तो प्रिंसिपल साहब के नाम पे होगा, या जो भी होगा, जो भी पॉलिसी आप बना लेते हैं। कोई भी फेसबुक पे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं डालेगा, फेसबुक में इन्फॉर्मेशन जब भी डालेंगे तो रजिस्ट्रार साहब डालेंगे, एंड सो
इस तरह का आपके पास पॉलिसी होना चाहिए ताकि उसका मिसयूज नहीं हो, गलत इंफॉर्मेशन लोगों तक ना जाए, मिस इन्फॉर्मेशन नहीं फैलना चाहिए। तो उसके लिए एक पॉलिसी आप डिफाइन कर लीजिए कि हाउ विल यू यूज सोशल मीडिया, क्योंकि बहुत इफेक्टिव मीडिया है आजकल इसका इस्तेमाल करने के लिए, उसके लिए एक पॉलिसी होनी चाहिए। जितनी बातें अभी हमने आपसे की हैं दैट हैज बीन समराइज्ड ओवर हियर। उसके बाद कुछ सजेशंस भी देंगे। बोले सर ये सब तो ठीक है, अब हम सब कुछ समझ गए, अब आप ये बताइए कि हम अपने अगर यूनिवर्सिटी में क्या करना चाहते हैं, ई गवर्नेंस का इंप्लीमेंटेशन करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। अब हम लोग ये देखना चाहते हैं इंप्लीमेंटिंग ई गवर्नेंस सिस्टम इन आवर यूनिवर्सिटी, इन आवर कॉलेज, मे बी एनीथिंग, है ना। तो सबसे पहले सर इसमें आपको देखना पड़ेगा कि टू बिगिन विथ your college and institution must identify some of the below listed generic functionalities related to e-governance system। कहने का मतलब है what do you want to govern, क्या गवर्न करना चाहते हैं, identify the process or activities to be governed, कौन सा प्रोसेस है, तो आपको क्या किसको गवर्न करना चाहते हैं और कौन सा प्रोसेस है जिसको आप ऑटोमेट करना चाहते हैं, ये आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो सबसे पहले से आपने एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं कि आपने कहा कि सर सबसे पहला तो काम है कि हम इंफॉर्मेशन शेयरिंग को बहुत मजबूत करना चाहते हैं, कि हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द हमारा इंफॉर्मेशन हमारे स्टेक होल्डर तक, स्टेक होल्डर का मतलब स्टूडेंट तक, टीचर तक, कोई भी इंफॉर्मेशन अगर जनरेट होता है तो वो बहुत आसानी से अब तुरंत पहुंच सके। तो बोला ठीक है आप ऐसा कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं सर हम लोग, तो देखिए सर ई गवर्नेंस जब भी इंप्लीमेंट करते हैं तो एक गो में नहीं होता है, इट इज नॉट इंप्लीमेंटेड इन वन गो, इट टेक्स टाइम। So you will have to implement e-governance in phases, I mean to say, in the phased manner। तो बोलिए सर कैसे phased manner में कैसे कर सकते हैं, तो देखिए हम आपको एग्जांपल लेके बताते हैं कि मान लीजिए कि आप एडमिशन प्रोसेस आपने आइडेंटिफाई किया कि हमको अपने एडमिशन प्रोसेस को क्या करना है सर, ऑटोमेट करना है, उसमें आईसीटी का इस्तेमाल करना है और अपने एडमिशन प्रोसेस को हमको मोर इफेक्टिव बनाना है, मोर इफिशियंट बनाना है, मोर प्रोडक्टिव बनाना है। अभी कैसे करते हैं सर हम लोग एडमिशन, तो अभी जो एडमिशन हम लोग करते हैं सर उसमें क्या करते हैं कि लड़के को आना पड़ता है एडमिशन काउंटर पे, वहां पर हम उसको एक एप्लीकेशन फॉर्म देते हैं जिसको एडमिशन फॉर्म भरते हैं, वो फॉर्म लेके लड़का घर चला जाता है, घर में जाकर के एडमिशन फॉर्म भरता है, उसमें अपना फोटोग्राफ लगाता है, उसके साथ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट लगाता है, फिर लाके सर जमा कर देता है एडमिशन काउंटर पे। अब हमारे पास एक टीम होती है सर टीचर्स की, उसको वेरीफाई करती है, वो लड़का अगर एलिजिबल पाया जाता है तो आफ्टर वेरिफिकेशन हम एक नोटिस बोर्ड पे लिखा देते हैं कि दीज स्टूडेंट और सच एंड सच स्टूडेंट हैज बीन सिलेक्टेड फॉर एडमिशन। तो एक एडमिशन लिस्ट हम निकाल देते हैं नोटिस बोर्ड पे, लड़का आके नोटिस बोर्ड देखता है अच्छा मेरा नाम आ गया है, तो वो जाकर के फिर फीस जमा करता है और एडमिशन लेता है। यही प्रोसेस है सर एडमिशन लेने का जो हमने आपको बताया। जी जी सर, है ना, यही तो प्रोसेस है, जनरल प्रोसेस यही होता है किसी भी कॉलेज में जी। एडमिशन का ये प्रोसेस है। लेकिन देखिए सर इसमें स्टूडेंट को कितनी दिक्कतें हो रही है, उसको आना पड़ रहा, एडमिशन फॉर्म लेना पड़ रहा, खरीद के लेकर के घर गया, भरा, फिर ला करके दूसरे दिन जमा किया, अब आप उसकी वेरिफिकेशन कर रहे हैं मैनुअल, उसके बाद लिस्ट निकालते हैं, फिर लिस्ट चिपकाते हैं अपने नोटिस बोर्ड पे, वो लिस्ट देखने के लिए फिर उसको आना पड़ता है, वहां आया, फिर उसके बाद एडमिशन लेने आना। एडमिशन लेने का मतलब है कि जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह जमा करेगा और फीस जमा करेगा तब उसका एडमिशन कंप्लीट होगा। तो भाई 10 बार उसको आपके कॉलेज के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, तो होल प्रोसेस जो है बहुत मुश्किल है। इसको आसान कैसे बना सकते हैं, आईसीटी के इस्तेमाल से इसको ऑटोमेट कर सकते हैं। ऑटोमेट का मतलब इसमें आईसीटी का इस्तेमाल करके हम प्रोसेस को मोर एफिशिएंट, प्रोडक्टिव और ट्रांसपेरेंट बना सकते हैं। कैसे सर, देखिए सर हमने क्या किया कि कुछ नहीं, अपने वेबसाइट पे सबसे पहले हमने सर एक इंफॉर्मेशन डिस्प्ले कर दिया कि एडमिशन प्रोसेस विल स्टार्ट फ्रॉम 15th ऑफ जुलाई टू 31st ऑफ जुलाई, आपने कर दिया, बोला ठीक है सर ये सबको मिल गया। उसके नीचे आपने लिख दिया कि इस कोर्स में, जिस भी कोर्स की आप बात करें, मास्टर कोर्स में या ग्रेजुएशन कोर्स में एडमिशन लेने की ये क्वालिटी है, ये क्राइटेरियाज है, ये एलिजिबिलिटीज है, आपने वो सारा लड़के ने देख लिया। अब लड़के को कहीं आना जाने की जरूरत सर नहीं पड़ रही है, उसने देख लिया, बोला हाँ ठीक है सर एडमिशन हो गया। बोला कि अब सर हमें एडमिशन फॉर्म चाहिए, फॉर्म चाहिए तो कहीं आना जाने की जरूरत नहीं सर, वहीं पर वेबसाइट पे आपने फॉर्म अवेलेबल करा दिया है। आपने क्या किया सर, वहीं पर फॉर्म अवेलेबल करा दिया, पीडीएफ फॉर्म है, क्लिक करिए डाउनलोड कर लिए, घर पे बैठे बैठे लड़के ने डाउनलोड कर लिया, प्रिंट कर लिया, उसने भरा हो रहा सर, भरने के बाद स्कैन करके वहीं अपलोड कर दीजिए। फॉर्म उसने स्कैन किया, वहीं अपलोड भी कर दिया, अपलोड करने के बाद आपके पास पहुंच गया फॉर्म। आपने अब क्या किया, उसकी सर स्क्रूटनी की, स्क्रूटनी करने के बाद जो भी आपकी सिलेक्ट लिस्ट है उसको आपने 5 दिन के बाद 10 दिन के बाद जो भी है आपने नोटिस दे दिया कि सिलेक्ट लिस्ट विल बी डिस्प्लेड ऑन 15 और 31st ऑफ जुलाई। 31st ऑफ जुलाई को लड़के ने देखा, अरे मेरा नाम आ गया वहां लिस्ट पे, कहीं आने जाने की जरूरत है, उसने वहीं पे बैठे बैठे पैसा क्या कर दिया सर, फोन पे के थ्रू या ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के थ्रू, बैंकिंग के थ्रू पैसा आपने जमा कर दिया। तो उस देखिए स्टूडेंट को कहीं आना जाना नहीं पड़ा और द होल प्रोसेस बिकम्स मच एफिशिएंट, इजियर
प्रोडक्टिव एंड ट्रांसपेरेंट। हो जाता है या नहीं हो जाता सर, जो बताइए, अगर हम आईसीटी का इस्तेमाल करते हैं। जी सर। तो करना क्या पड़ा सर, पहले आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो आपने आइडेंटिफाई यहाँ पर किया था कि हमको पहले अपने एडमिशन प्रोसेस को क्या करना है, ई गवर्नेंस का इस्तेमाल करना है, आईसीटी का इस्तेमाल करके एफिशिएंट बनाना है। तो आपने कर लिया, यहाँ पर देख लिया आपने कि पहले मैनुअल वाले में कितनी दिक्कत थी, स्टूडेंट को भी दिक्कत थी, आपको भी दिक्कत थी, सबको। और यहाँ पर अगर आपने आईसीटी का इस्तेमाल किया, द होल प्रोसेस बिकम्स मच easier for the stakeholder and that is the purpose of e-governance। इसी तरह से सर अगर आप रिजल्ट प्रोसेसिंग की बात करते हैं, फिर बोला ठीक है सर हमको बहुत सक्सेस मिला और हम इससे बहुत उत्साहित हुए कि हमारा एडमिशन प्रोसेस अच्छा हो गया। अब थोड़ा सर हम जरा एडमिशन रिजल्ट प्रोसेसिंग को थोड़ा सा करना चाहते हैं सर। अच्छा, कभी क्या होता है सर कि हम ओएमआर सीट से कराते हैं, फिर ओएमआर सीट में हमने लिया, अब वो सब फिर बैठ के मैनुअल चेक करते हैं सर, चेक करने में बहुत टाइम लग जाता है, फिर रिजल्ट डिस्प्ले करते हैं और टाइम लगता है। अभी सर मान लीजिए कि एक ऑब्जेक्टिव टेस्ट आप कराते हैं, तो ऑब्जेक्टिव टेस्ट कैसे कराते हैं सर, आप क्वेश्चन बना करके दे देते हैं स्टूडेंट को, क्वेश्चन आपने दे दिया, ओएमआर शीट में लड़का भरता है, ओएमआर शीट में आपने भर दिया लड़के ने, फिर ओएमआर शीट आपको जमा कर दिया। अब आप लेकर के मैनुअली एक एक आपका वन का आंसर ए देखा, हाँ आंसर ए ठीक लिखा, बी ठीक लिखा, बैठ के मैनुअली चेक करते हैं, गलती होने के भी चांसेस है, 50 तरह की उसमें सर दिक्कतें हैं। और रिजल्ट में डेली भी, अच्छा मान लीजिए कि 100 लड़के ने दिया तो आपने कर लिया, अगर आपके यहाँ पर 10,000 लड़के अपीयर हो गए तो 10,000 चेक करने में आपको क्या लगेगा, ज्यादा टाइम लगेगा, वक्त लगेगा, लगेगा ना सर कि नहीं लगेगा चेक करने में, बताइए सर। यस सर, बहुत वक्त लगेगा। लेकिन अगर आप इस प्रोसेस को ऑटोमेट करना चाहते हैं, ऑटोमेट का मतलब हम आईसीटी का इस्तेमाल करना चाहते हैं रिजल्ट प्रोसेसिंग में, तो देखिए सर आपको कुछ नहीं करना है, 100 क्वेश्चन का टेस्ट है, बोला बाबू आपको कहीं आने जाने की जरूरत नहीं है, हमारा टेस्ट 10 बजे से 10:30 बजे तक खुलेगा, आप अपने कंप्यूटर पर ये लिंक है ऑन करिए, जैसे ऑन किया लगा क्वेश्चन नंबर 1 दिखने लगा, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर उसने ए लिखा, बी लिखा, जो भी लिखा, सी लिखा, डी लिखा, 2 3 4 5 उसके 100 क्वेश्चन वहां पे आ गए, और जैसे उसने सबमिट किया उसका आंसर सबमिट हो गया, उसका सिस्टम लॉक हो गया। अब वो सारे आंसर आपके पास पहुंच गए, 2 मिनट के अंदर उसका रिजल्ट पता चल गया कि अच्छा उसने 100 में से 20 मार्क्स या 100 में 30 मार्क्स, 100 में 40 मार्क्स, जितना भी लाया है, 1 लड़के का मार्क्स उसको पता भी चल गया, और आपके पास सारे मार्क्स कलेक्ट हो गए। वहां पर आपने कहा इसको असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर दीजिए, डिसेंडिंग ऑर्डर में जैसे ही सॉर्ट किया, सबसे ऊपर 90 वाला, उसके नीचे 80 वाला, 89 वाला, सब इस तरह से जो भी है डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट होकर आ गया। उसमें 100 लड़के लेने हैं, 200 लड़के आपको लेने हैं, ऊपर से लेकर के जहां तक ले, तो 1 सेकंड के अंदर, 2 सेकंड के अंदर आपका सब सारा काम यहाँ पर कंप्लीट हो गया, ना किसी को मैनुअल। लेकिन ये काम कैसे हुआ, विद द यूज ऑफ आईसीटी। यहाँ पर आपने आईसीटी का इस्तेमाल किया ताकि ऑटोमेटिकली लड़के के पास वो क्वेश्चन आ रहा था, उसका आंसर दिया, ऑटोमेटिकली वेरीफाई, ऑटोमेटिकली वो क्या हो गया, इवेल्युएट हो गया, उसके सही गलत जो भी थे वो आंसर आ गए और सारा रिकॉर्ड आपके पास पहुंच गया। आपने सर गूगल फॉर्म का नाम सुना होगा सर, ज्यादातर लोगों ने गूगल फॉर्म का नाम सुना होगा, गूगल फॉर्म है ना जी सर, आपने भरा भी होगा, तो गूगल फॉर्म के थ्रू आपने टेस्ट जी। करा लिया, 2 मिनट के अंदर आपके पास सारे डेटा वहां पर पहुंच गया एक्सेल शीट में, उसको जैसे चाहिए आप अपने मैनिपुलेट कर लीजिए, रिजल्ट आपका 2 मिनट के अंदर कैलकुलेट हो गया। तो आई मीन टू से कि बाय यूजिंग आईसीटी इन वेरियस प्रोसेसेस द होल गवर्निंग प्रोसेस बिकम्स ट्रांसपेरेंट, एफिशिएंट, प्रोडक्टिव एंड ईजियर। हो जाता है या नहीं सर, तो बताएं, बताएं सर, बताएं होता है या नहीं होता है। जी सर। तो आपको सर ये तय करना पड़ेगा एज ए एडमिनिस्ट्रेटर कि हमको पहले कौन सा काम करना है, फिर दूसरे पे कौन सा काम, ये पॉलिसी की बात हम लोग कर रहे थे। तो पहले एडमिशन प्रोसेस करना है, फिर रिजल्ट प्रोसेस करना है, फिर रिक्रूटमेंट करना है, जो भी करना है, फिर प्लेसमेंट प्रोसेस करना है, एक आपने पॉलिसी बना लिया और एक एक करके काम आपने करना शुरू कर दिया। तो हम लोग सर देखिए अभी जैसे हम बात कर रहे हैं आपसे कि जैसे अभी पहला वाला बात हमने किया था कि वेबसाइट जैसे कि हम लोग सर शुरू कर रहे हैं इंफॉर्मेशनल, तो सबसे पहले हमने सर पहले फेज में हमने क्या किया, एक वेबसाइट बनवाया, बोला भाई ठीक है, किसी भी आदमी को हायर किया, बोला भाई एक वेबसाइट बना दो हमारा, उसने एक वेबसाइट बना दिया। अब हम वेबसाइट में क्या करते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन है उसमें हम जाकर के डिस्प्ले कर देते हैं वेबसाइट में कि से फॉर एग्जांपल एडमिशन, तो हमारा एडमिशन 15 से 30 जुलाई तक होगा, आपने कर दिया। काउंटर के लिए एलिजिबिलिटी ये है साहब, फॉर्म कहाँ मिलेंगे, आपने लिख दिया कि फॉर्म काउंटर नंबर 3 पे मिलेंगे, जो भी इंफॉर्मेशन आपका है आपने वेबसाइट पे ला करके रख दिया। ये पहला फेज है, इससे भी लड़के को बहुत आसानी हो गई। अब उसके पेरेंट्स को या बच्चे को आना जाना नहीं है, आपके वेबसाइट पे उसने देख लिया कि अच्छा 15 से 30 तारीख तक है, हम किसी दिन शहर जाएंगे, कॉलेज जाएंगे, काउंटर नंबर 3 पे फॉर्म मिल रहा है, काउंटर नंबर 3 से फॉर्म ले लेंगे। इसको हम लोग कहते हैं सर इंफॉर्मेशनल वेबसाइट। तो इंफॉर्मेशन शेयरिंग तो आपने कर लिया। अब बोले कि सर अब लड़के को सिर्फ आप तकलीफ दे रहे हैं कहां तक आने के लिए, कि आपके कॉलेज में भी आना पड़ रहा है। ऐसा क्यों नहीं करते हैं कि उसी वेबसाइट में पीडीएफ का एक फॉर्म रख दीजिए, वो वहीं से डाउनलोड कर ले और फिर घर से भर के लाके जमा कर दें यहाँ। बोली चलिए ठीक है। तो अब सेकंड फेज में देखिए आप क्या कर रहे हैं, उसकी लाइफ को और आसान बना रहे हैं।
बाई पुटिंग ए पीडीएफ फॉर्म ओवर देयर। तो आप देखिए इंटरेक्टिव हो गया, अब लड़के को आने की जरूरत नहीं है फॉर्म खरीदने के लिए आपके काउंटर पे, सिटिंग एट हिज होम प्लेस, वो क्लिक किया उसने, फॉर्म डाउनलोड हो गया, अरे फॉर्म मिल गया, प्रिंट कर लिया उसने, अब वहीं पे भर दिया उसने, बैठे बैठे घर में भर लिया फॉर्म को, लाके आपके पास सिर्फ जमा कर दिया। तो सेकंड फेज में देखिए उसके काम को आपने आसान कर दिया। फॉर्म लेने के लिए पहले आना पड़ता था, अब दैट स्टूडेंट नीड नॉट टू कम टू योर कॉलेज, घर से बैठे बैठे फॉर्म जमा कर दिया। अच्छा सॉरी, घर से बैठे बैठे फॉर्म भर लिया, जमा कर दिया। बोलिए एक डिग्री और आई है सर, अभी भी तो लड़के को आना पड़ रहा है, उसको आना ना पड़े जमा करने के लिए। बोला अच्छा ठीक है। तो थर्ड फेज में आपने क्या किया सर यहाँ पर कि कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन टू ई गवर्नमेंट। बोला कि ठीक है सर आप पीडीएफ में भर ले, वहीं से आपने ऑप्शन दे दिया कि भाई आपको क्या करना है, ऑनलाइन फॉर्म आ जाएगा, उसी पे भर दीजिए और नीचे सबमिट कर दीजिए। जैसे सबमिट बटन करेंगे ये सारा इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ जाएगा। एंड नाउ द स्टूडेंट नीड नॉट टू गो टू द कॉलेज टू सबमिट द एडमिशन फॉर्म। तो इस तरह से सर जब भी आप काम करते हैं ई गवर्नेंस को इंप्लीमेंट करने का, ये फेज वाइज होता है। पहले आप इंफॉर्मेशन शेयरिंग बनाया, टू इंटरेक्टिव सिस्टम बनाया, टू ट्रांजैक्शन। तो ठीक है फॉर्म भी सबमिट कर दिया और उसके बाद फीस जमा करना है तो वहीं बैठे बैठे उसने फीस भी जमा घर से कर दिया, कहीं आने जाने की जरूरत नहीं है। द होल एडमिशन प्रोसेस कैन बी कंप्लीटेड बाय सिटिंग एट योर ओन कंप्यूटर एट योर होम, कहीं आने जाने की जरूरत नहीं है सर। तो देखिए सर ई गवर्नेंस में इंसान या आईसीटी के इस्तेमाल ने गवर्नेंस प्रोसेस को कितना आसान बना दिया है और स्टेक होल्डर के लाइफ को कितना इजी बना दिया है या नहीं बना दिया है सर, बताएं आप लोग। जी सर। तो हम लोग भी एज ए टीचर, एज ए एडमिनिस्ट्रेटर, हमारी भी जिम्मेदारी होती है कि हम आईसीटी का इस्तेमाल करें और अपने गवर्नेंस प्रोसेस को, जो भी हमारा गवर्नेंस प्रोसेस है कॉलेज का, उसको हम बेहतर बना सकते हैं। तो उसके लिए हमने आपको बताया सर कि आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन कौन से मैंने प्रोसेस है जिसको हम ऑटोमेट करना चाहते हैं और फिर आप ऑटोमेट करिए। फिर बोलेंगे सर तो ठीक है सर, थोड़ा सा टेक्नोलॉजी के बारे में तो बता दीजिए कि कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज अवेलेबल हैं जिसका इस्तेमाल हम अपने कॉलेज में कर सकते हैं। तो देखिए सर दो तरह की चीजें यहाँ पर आती हैं। जैसे से फॉर एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं, एक शर्ट आपको खरीदना है, शर्ट अपने लिए बनवाना, शर्ट पैंट की बात कर रहा हूँ, शर्ट। तो दो तरीके हैं इसको। एक तरीका तो है सीधे आजकल रेडीमेड शॉप में जाइए, आपके नंबर का सर, आपके 42 नंबर आता है, 40 नंबर आता है, जो भी आपको अपना मेजरमेंट मालूम होना चाहिए, उस नाम का आपको शर्ट मिल जाएगा, रेडीमेड शर्ट ले लीजिए। दूसरा तरीका है सर, आप बोलिएगा नहीं सर शर्ट हम खरीदते हैं ना, मेरा बॉडी ऐसा है कि हमको फिट नहीं आता सर, कभी पेट के पास टाइट हो जाता है, कभी मैंने बॉडी के पास टाइट हो जाता है, कभी लेंथ कम हो जाता है, कभी बांह कम हो जाता है हमारा। तो हम क्या करते हैं सर, दूसरा अप्रोच अपनाते हैं। हम पहले कपड़ा खरीद के लाते हैं, फिर एक टेलर मास्टर को देते हैं, वो टेलर मास्टर हमारा मेजरमेंट लेके बड़ा परफेक्ट शर्ट बनाता है सर, वो हमारे लिए बहुत अच्छा होता है। तो ये दो अप्रोच हुए सर शर्ट बनवाने की। अल्टीमेट प्रोडक्ट शर्ट है, लेकिन एक तो आप गए मार्केट में, सीधा खरीदा, पहन लिया शर्ट। दूसरा तरीका नहीं, हम पहले क्लोथिंग मार्केट मर्चेंट के पास गए, वहां से कपड़ा खरीदा, फिर टेलर मास्टर के पास गए, अपना मेजरमेंट दिया। मेजरमेंट का मतलब अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमने शर्ट बनवाया और वो शर्ट बड़ा फिट आया, हमको बड़ा अच्छा लगा। यही चीजें सर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में भी होती हैं। देखिए ना, बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो रेडीमेड आप कर सकते हैं, जैसे लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो हर जगह लाइब्रेरी का एक ही जगह काम होता है, उसके लिए बहुत से रेडीमेड सॉफ्टवेयर मिलते हैं। तो लाइब्रेरी मैनेजमेंट का रेडीमेड सॉफ्टवेयर आपने लिया, अपने कॉलेज में इंप्लीमेंट कर दिया। इट इज जस्ट लाइक बाइंग रेडीमेड शर्ट, चलिए इंप्लीमेंट हो गया। दूसरा अप्रोच ये होता है कि नहीं साहब, हम जो है अपने कॉलेज में 2 प्रोग्रामर को रखेंगे और अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक वो सॉफ्टवेयर हमने बनवाया, जो हमारा रिक्वायरमेंट है कैसे काम होता है, और उसके मुताबिक सॉफ्टवेयर बन गया, वो भी काम करेगा। तो पहले वाले को सर हम लोग बोलते हैं ऑफ द सेल्फ प्रोडक्ट। पहले वाले को बोलते हैं ऑफ द सेल्फ प्रोडक्ट, मतलब है कि रेडीमेड चीज खरीद के लाइए और इंप्लीमेंट कर लीजिए। और दूसरे वाले को बोलते हैं इन हाउस डेवलपमेंट या टेलर मेड सिस्टम। तो आप अपने कॉलेज में सिस्टम प्रोग्रामर को रखिए, 4 प्रोग्रामर को बहाल कर लीजिए और उनसे अपनी जरूरत के मुताबिक अपने सारे सॉफ्टवेयर बनवा लीजिए। तो वो ज्यादा अच्छा अप्रोच है। तो दोनों अप्रोच के अपने फायदे और नुकसान होते हैं, तो वो तो खैर हम लोग बाद में देखेंगे। अच्छा, अब थोड़ा सा टेक्नोलॉजी ओवरव्यू। हम लोग बोले सर टेक्नोलॉजी तो बता दीजिए कि क्या क्या होता है। तो देखिए सर, आजकल लॉट ऑफ टेक्नोलॉजीज आर अवेलेबल इन द मार्केट, जिसका इस्तेमाल करके आप ई गवर्नेंस को अपने कॉलेज में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अच्छा, गवर्नमेंट भी इसमें बहुत सारी मदद कर रही है। तो एक सामर्थ नाम का प्रोडक्ट है सर, सामर्थ, देख पा रहे हैं सर, लिखा हुआ है SAMART, सामर्थ नाम का प्रोडक्ट है। हाँ, समर्थ पोर्टल है सर, उत्तराखंड में भी है सर। हाँ, हर जगह है, उन्हें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में है तो सब जगह मिलेगा वो आपको। तो सामर्थ क्या करता है सर, आपके बहुत से प्रोसेस को ऑटोमेट करने के लिए सुविधाएं प्रदान करता है। अभी हम आपको दिखाते हैं सर कि सामर्थ, देखिए यहाँ पर देखिए सर, अगर सामर्थ को आप इंप्लीमेंट करेंगे तो देखिए अकाउंट्स वाले पोर्शन को आप कर सकते हैं ऑटोमेट,
उसमें बिल ट्रैकिंग सिस्टम है, फी मैनेजमेंट सिस्टम है, पेरोल, ये सब सारा चीजें आपका सारा प्रोसेस ऑटोमेट हो जाएगा। एकेडमिक से रिलेटेड एकेडमिक मैनेजमेंट, इवैल्यूएशन एंड ग्रेडिंग, ये सब सारी चीजें आपकी हो जाएंगी। एडमिनिस्ट्रेशन का ये सब सारा काम हो जाएगा। ये सारे मॉड्यूल उसमें मौजूद है सर। उसमें 36 से 40 मॉड्यूल अवेलेबल है। ये सब छोटा छोटा का मॉड्यूल बोलते हैं। स्टूडेंट फीडबैक, एडमिशन, एलुमनाई पोर्टल, हॉस्टल मैनेजमेंट, ट्रेनिंग एंड सो ऑन सो। तो इस तरह के सारे मॉड्यूल्स उसमें मौजूद हैं। 40 मॉड्यूल उसमें, लगभग 42 मॉड्यूल्स हैं। तो सर इसको करने के यूज करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। गवर्नमेंट इंडिया को, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को एक खत लिखेंगे आप कि सर हम सामर्थ यूज करना चाहते हैं। तो अच्छा, बहुत अच्छी बात है। वो आपको क्या करेंगे, एक लॉगिन पासवर्ड दे देंगे। बस आप लॉगिन पासवर्ड लीजिए, आपको कुछ नहीं चाहिए, एक कंप्यूटर होना चाहिए, उसके थ्रू आप लॉगिन कीजिए, पासवर्ड लीजिए और आप ये सारे मॉड्यूल्स आप यूज कर सकते हैं और अपने डेटा के मुताबिक इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सामर्थ पोर्टल सर अवेलेबल है। बोले ठीक है सर, ये तो सामर्थ पोर्टल समझ में आ गया, ये तो सारे एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब के लिए हो गया। पढ़ने पढ़ाने के लिए क्या है सर? तो पढ़ने पढ़ाने के लिए स्वयं पोर्टल है इनका। स्वयं में क्या है सर? बहुत सारी कोर्सेज मौजूद है, वहां पर बहुत सारे कोर्सेज मौजूद है जिसका इस्तेमाल कर करके आप फर्दर लर्निंग कर सकते हैं। एडवांस चीजों की लर्निंग आप भी कर सकते हैं, आपका स्टूडेंट भी कर सकता है। अतः एक पोर्टल तो है ही, उसके अलावा स्वयं प्रभा नाम से चैनल भी है सर, जिसमें 24/7 प्रोग्राम्स आते रहते हैं, 1 घंटा का। कि अभी जो है मान लीजिए केमिस्ट्री का ये चीज पढ़ाया जाएगा, दूसरे घंटे फिजिक्स में ये टॉपिक पढ़ाया जाएगा, तीसरे घंटे 24 घंटे ये चलता रहता है। तो स्टूडेंट इससे भी लाभान्वित हो सकते हैं। इस तरह के बहुत सारे इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने शुरू कर रखे हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप इसके लिए कुछ नहीं करना है। दूसरा पता है सर कि हमने लाइब्रेरी को अगर ऑटोमेट करना है आपने तब, तो देखिए सर उसके लिए इस तरह के सॉफ्टवेयर आते हैं जिसको लिप्सिस बोलते हैं या लिब मैनेजमेंट सिस्टम, लिबएमएस के नाम से। ये सब सारी सॉफ्टवेयर फ्री ऑफ कॉस्ट मौजूद। कोहा का नाम आपने सुना होगा, न्यूजन लिब का नाम आपने सुना होगा। इस तरह के बहुत सारे सॉफ्टवेयर मौजूद हैं जिसके लिए पैसे नहीं देना पड़ते, फ्रीली अवेलेबल है। नेट पे जाइए, इसको अपने सिस्टम पे इंस्टॉल कर लीजिए और आप अपने लाइब्रेरी को ऑटोमेट कर सकते हैं। तो ये सब सारी चीजें सर मौजूद हैं। अब सर थोड़ा सा सर मैं आपको दिखा दूं, 1 मिनट लगेगा। मैं हमने सामर्थ की बात की थी, तो देखिए सर ये सामर्थ का पोर्टल है। आप देख पा रहे हैं सर हमारे स्क्रीन, अगर देख पा रहे हो सर तो देखिए ये सामर्थ का पोर्टल है। एक हम दिखा देते हैं आपको कि कैसे चीजें आसान हो जाती हैं सर। सामर्थ का पोर्टल देख पा रहे हैं सर? यहाँ पर सामर्थ ई गवर्नमेंट देख पा रहे हैं? हाँ या ना में जवाब दीजिए सर। ये सामर्थ जी सर, देख रहे हैं। हाँ, ये देखिए सर हम अभी इस वक्त चेयरपर्सन डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस के लॉगिन से हैं, तो हमारे लिए जो सुविधाएं होनी चाहिए वो दिख रही हैं। तो देखिए सर यहाँ पर लिखा हुआ है कि एम्प्लॉय पेंडिंग सैंक्शन लीव। एक आदमी ने, एक एम्प्लॉय हमारा है जिसने अप्लाई किया हुआ है, उसका भी पेंडिंग है, आपने सैंक्शन नहीं किया लीव। बोले कौन है? देखिए यहीं पे मैंने क्लिक कर दिया। जैसे क्लिक किया देखिए दिख रहा सर यहाँ पर कि जमाल नासिर नाम के एक साहब हैं, इन्होंने सीएल के लिए अप्लाई किया हुआ है। इनको 5 तारीख से 1 दिन का सीएल चाहिए, जो अभी तक आपने पेंडिंग रिक्वेस्ट है, आपने नहीं किया है। ठीक है ना सर? हम आपको समझने के लिए बता रहे हैं। बोले नहीं ठीक है, जल्दी इसको कर देते हैं। तो देखिए सर हमने पहले देखा कि इनका क्या है। जैसे ही क्लिक किया देखिए जमाल नासिर साहब का पूरा डिटेल आ गया। अच्छा इनका ये है, 1 दिन की छुट्टी है, इंपॉर्टेंट वर्क के लिए दिल्ली जा रहे हैं, पर्सनल वर्क है, इनको स्टेशन लीव है, सारी बातें सर लिखी हुई है। और देखिए सर ये सैंक्शन जो है पेंडिंग है, देख पा रहे हैं सर? यहाँ सैंक्शन देखिए और पेंडिंग देख पा रहे हैं या नहीं देख पा रहे हैं? हाँ या ना में जवाब दीजिएगा सर। जी सर, देख पा रहे हैं। है ना? सैंक्शन इसलिए पेंडिंग है कि अभी चेयरमैन साहब ने इसको क्या किया था, सैंक्शन नहीं किया है। बोले अच्छा सर नहीं इनका छुट्टी जल्दी से सैंक्शन कर दीजिए। तो देखिए सर आप देखिएगा सैंक्शन स्टेटस, यहाँ पर क्लिक करिए, हमने इनको सैंक्शन कर दिया। एज ए चेयरपर्सन हमने क्या किया सर? देखिएगा क्या कर दिया, इनको सैंक्शन कर दिया। देख पा रहे हैं सर? ये सैंक्शन कर दिया और सबमिट किया। जैसे ही हम सैंक्शन करेंगे तो आप देखिएगा कि इनकी छुट्टी सैंक्शन हो गई। मैं दिखा रहा हूं सर आप, तो आपने यहाँ से क्लिक किया, देखिए सर इनका सब सैंक्शन हो गया। और यहाँ पर जब नीचे आकर के देखिएगा सर, तो देखिए अब सैंक्शन स्टेटस देखिए क्या दिखा रहा है सर। चेयरपर्सन में देखिए क्या दिखा रहा है, डन दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा? देखिए क्या दिखा रहा है, पहले पेंडिंग दिखा रहा था यहाँ पे सर, अब डन दिखा रहा। यानी इनको छुट्टी क्या हो गई सर? सैंक्शन हो गई। सैंक्शन हो गई। और यहाँ पर जो दिखा रहा था इनका एक, देखिए अब यहाँ पर लीव सैंक्शन, यहाँ पर अब देखिए जमाल नासिर पर नाम नहीं आ रहा है ना, यहाँ से गायब हो गया। यहाँ पर देखिए जो लीव स्टेटस यहाँ पर देखिए अब दिखा रहा है एम्प्लॉय पेंडिंग में 0 दिखा रहा, यानी इनका जो भी आपको काम नहीं है सब हो। मेरी बात समझ पा रहे हैं सर? तो एम्प्लॉय को भी अब छुट्टी देने के लिए कहीं आने जाने की जरूरत नहीं, ना एप्लीकेशन लिखने की जरूरत है कुछ है। इसमें घर बैठे बैठे इसने पोर्टल को खोला, यहाँ पर अप्लाई कर दिया, चेयरमैन को तुरंत मेल भी आ जाता है। चेयरमैन साहब ने मेल देखा, अच्छा अप्लाई करके वहीं पे खोला उन्होंने वेबसाइट, उन्होंने सैंक्शन कर दिया। या नहीं सैंक्शन करना है तो नहीं सैंक्शन किया, वो दोनों बातें उसको दिख जाएंगी। तुरंत मेल एम्प्लॉय के पास चला जाता है कि जमाल नासिर साहब, चेयरमैन साहब ने आपका ईमेल क्या कर दिया, सैंक्शन कर दिया। तो द होल प्रोसेस ऑफ सैंक्शनिंग द लीव बिकम्स मच एफिशिएंट, ट्रांसपेरेंट एंड इजियर। हो जाता है या नहीं हो जाता सर? ये बताइए, आसानी हो जाती है या नहीं हो जाती है सर? जी सर।
तो हमने एक एग्जांपल लेके बताया आपका जो लीव मैनेजमेंट। इसी तरह से जैसे हमने बताया 42 मॉड्यूल इसमें, ये तो लीव का मॉड्यूल मैंने आपको दिखाया। इसी तरह से लड़कों का एवेल्युएशन का 50 मॉड्यूल यहाँ पर सर है। चलिए, तो एक टेक्नोलॉजी आपको मैंने दिखा दी सामर्थ्य की। दूसरी चीजें आप सब दिखा देते हैं। एक कहलाता है सर लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। बोलिए सर हमको लड़कों को पढ़ाना लिखाना है, उतने सारे लड़कों का रिकॉर्ड हम कैसे रखेंगे, लड़कों के साथ हमें ऑल द टाइम नोट्स वगैरह शेयर करना पड़ता है, तो नोट्स वगैरह हम कैसे शेयर करेंगे, है ना। आपकी दूसरी क्लास कितने बजे से है बताइएगा मुझको, कोई क्लास होती है, शेड्यूल है आपके आगे? हाँ सर, जी 6 हाँ बजे सर, से है 6 सर। बजे से। 6 बजे से मैं 5 मिनट और लूंगा आपका, ठीक है, 5 मिनट और लूंगा, ठीक है। जी सर। तो खैर देखिए यहाँ पर तो हम बता रहे थे कि जी सर हाँ कैसे रिकॉर्ड रखेंगे, लड़कों के साथ आप नोट शेयर करना चाहते हैं अपने क्लास में तो कैसे शेयर कर सकते हैं। बहुत से लोग व्हाट्सएप के थ्रू करते हैं, इसके थ्रू करते हैं, बट दीज आर नॉट द बेस्ट मेथड। उसके लिए एक सॉफ्टवेयर आता है सर जिसको हम लोग कहते हैं लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। ये आपको हेल्प करता है आपके टीचिंग एंड लर्निंग रिलेटेड एक्टिविटीज को मैनेज करने में। तो देखिए सर हम दिखाते हैं आपको लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। यहाँ मैं फैकल्टी ऑफ साइंस में आता हूँ, ये फैकल्टी ऑफ साइंस, हम कंप्यूटर साइंस में आते हैं, डिपार्टमेंट कंप्यूटर साइंस क्लिक कर दिया। बोले किस कोर्स का देखना चाहते हैं सर, तो पीजी। कौन सा सेमेस्टर, इवेंट सेमेस्टर और सेमेस्टर, तो मैं इवेंट सेमेस्टर पढ़ाता हूँ। देखिए मैं कोर्स पढ़ाता हूँ नेटवर्क प्रोग्रामिंग। देख पा रहे हैं सर, ये सारा स्क्रीन दिख पा रहा होगा आपको यहाँ पर, मैं जल्दी कर रहा हूँ, थोड़ा जल्दी की वजह से। नेटवर्क प्रोग्रामिंग देख पा रहे हैं? जी जी सर दिख रहा है। तो नेटवर्क प्रोग्रामिंग बोलेगा अच्छा ठीक है। तो एज ए टीचर हमारा लॉगिन क्या है, तो हमने एज ए टीचर अपना लॉगिन यहाँ पर दे दिया सर। जैसे ही हमने लॉगिन किया, देखिए सर लॉगिन किया, ये नेटवर्क प्रोग्रामिंग देखिए आ गया, ये कोर्स का नाम है। ये टीचर देखिए आसिम जफर, यहाँ राइट हैंड साइड अपर कॉर्नर पे देखिएगा सर, यहाँ आसिम जफर दिख रहे हैं टीचर, देख पा रहे हैं सर, ये टीचर दिख पा रहे हैं यहाँ पे, है ना। अच्छा ये देखिए साहब अनाउंसमेंट है कि नेटवर्क प्रोग्रामिंग क्या है, ये 4 यूनिट का कोर्स है, इसमें क्या क्या पढ़ाया जाएगा सब बातें लिखी हुई हैं। अनाउंसमेंट लिखा हुआ है, मूक्स के बारे में लिखा हुआ है, जिन जिन लोगों ने असाइनमेंट दिया वो लिखा हुआ है, क्विजेज लिखे हुए। देखिए यूनिट 1, तो हमने यूनिट 1 में ये मटेरियल लड़कों के साथ शेयर किया है। यूनिट 2 हमारा सिलेबस 4 यूनिट में बटा हुआ होता है सर, तो यूनिट 2 में हमने लड़कों के साथ ये शेयर किया है, यूनिट 3 में ये शेयर किया है, यूनिट 4 में ये शेयर किया है। बोला सर यूनिट 4 में क्या शेयर किया, जरा दिखाइए तो सर, फायरवेल एक क्लिक करके देखिए, तो ये रीडिंग मटेरियल है जो कि हमने स्टूडेंट के साथ शेयर किया है। तो स्टूडेंट के भी लॉगिन पासवर्ड होते हैं, वो जाएगा जैसे इस कोर्स में, तो उसको ये सारे मटेरियल्स वहां पर सर दिखेंगे। बोले अच्छा ये तो बड़ा आसान है सर, यहाँ से लड़का डाउनलोड कर सकता है, ये कर सकता है। ये सिलेबस है सर, हमने सिलेबस भी अपलोड कर दिया है, लड़का चाहे जाकर के अपना सिलेबस भी देख सकता है। तो ये देखिए सर सिलेबस भी हमने यहाँ पर डाला हुआ 4 यूनिट का, है ना। तो कहने का मतलब ये है सर कि लड़का जब भी चाहे लड़कों के साथ आप शेयर कर सकते हैं। बोला अच्छा सर ये तो शेयर करना बहुत अच्छा हो गया, आप बोलिए कि बोल रहे थे असाइनमेंट क्विज, बोले हाँ क्विज भी करते हैं। देखिए आप क्विज करना हो, देखिए हमने क्विज ऑलरेडी कंडक्ट किया है सर, क्विज। बोले अच्छा ये क्विज हुआ सर, देखिए यहाँ लिखा हुआ अटेम्प्ट 61, कितने लोगों ने सर अटेम्प्ट किया इस क्विज में, कितने लोगों ने हिस्सा लिया सर, 61 ने। बोले दिखाइए तो सर, क्लिक मैंने किया, तो देखिए पूरे 61 लोगों का यहाँ पर पूरा ब्यौरा दिख रहा है। देखिए इस स्टूडेंट का नाम है, क्वेश्चन नंबर 1 इसका सही हुआ था, 2 सही हुआ था, 3 सही हुआ था, टोटल इसके 20 आए हैं। 20 में इसको इस लड़के को 15 आया, किसी को 19 आया, किसी को 17 आया, जो भी आया मार्क्स, इनके सारे मार्क्स वगैरह दिख रहे हैं। देख पा रहे हैं सर या नहीं, ये ऑटोमेटिकली मेंटेन हो रहा सर, इज इट क्लियर? जी सर। देखिए अब सबसे नीचे वाला का अबू तालिब है, इसको 2 नंबर आया है, इसका देखिए पहला सही हुआ, दूसरा सही हुआ, बाकी सारे देखिए सर इसके गलत हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 to 3 गलत, जिसके सही है गलत है सब आपको सर यहाँ दिखेंगे, है ना, और ये ऑटोमेटिकली मेंटेन होता रहता है। बोला अच्छा ये तो बहुत अच्छा हो गया सर, तो आपको सिर्फ क्वेश्चन बना के डाल देना है और टाइम बता देना है, वो उसी टाइम में ओपन होगा, लड़के को आना है, बोला घर बैठे कहीं से बैठे बैठे वो क्विज ले सकता है। बोला अच्छा क्विज तो ठीक है सर, असाइनमेंट अगर जमा कराना है हमको बच्चे को, ये भी करवा सकते हैं आप। असाइनमेंट का मतलब है कि आपने क्वेश्चन दे दिया लड़के को, है ना, ठीक है दिखाइए असाइनमेंट सर। बोले असाइनमेंट क्या दिया था आप दिखाइए तो सर, हमने देखिए ये असाइनमेंट दिया था लड़के को, देखिए मैं दिखा रहा हूँ यहाँ, ये असाइनमेंट दिया था और बोला था ये 5 क्वेश्चन है, व्हाट इज सिली सिंड्रोम, एक्सप्लेन द सॉल्यूशन टू ओवरकम द सिंड्रोम। दूसरा क्वेश्चन, तीसरा, 5 क्वेश्चन मैंने लड़के को दिया और बोला कि आप इतने तारीख तक क्लिक करके जमा कर दीजिए। बोले अच्छा, तो लड़के ने किया कि नहीं सर दिखाइए तो देखिए लड़के ने किया कि नहीं किया दिखाते हैं आपको। तो देखिए सर यहाँ पर हमने क्वेश्चन दिया था, यहाँ देखिए लिखा हुआ पार्टिसिपेंट्स, कितने पार्टिसिपेंट्स है देखिए यहाँ लिखा हुआ, देखिए सर पढ़िए जल्दी बताइए सर कितने पार्टिसिपेंट्स हैं? 57 सर। यहाँ लिखा हुआ है कि सबमिटेड, कितने लोगों ने सबमिट किया, 50 लोगों ने। बोले दिखाइए तो सर कैसे सबमिट करता है, तो यहाँ देखिए व्यू ऑल सबमिशंस, मैंने क्लिक किया। तो टेक्नोलॉजी का सर आप इस्तेमाल देखिए जिससे चीजें कितनी आसान हो जाती है, हम आपको बताना चाह रहे हैं। तो देखिए सर मनीष कुमार, देखिए मनीष कुमार ने सर सबमिट कर दिया है ग्रेडिंग। बोले क्या सबमिट किया दिखाइए तो सर, तो यहीं से बैठे बैठे आप घर से बैठे बैठे मनीष कुमार का देखिए आपने असाइनमेंट चेक कर लीजिए। देखिए मनीष कुमार ने सबमिट किया है, ये क्वेश्चन नंबर 1 था सिली सिंड्रोम के बारे में, ये लिखा सिली सिंड्रोम के बारे में। दूसरा क्वेश्चन था एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल, देखिए वो लिखा, जो भी है 5 का आंसर किया। आपको इसमें से जितने मार्क्स उसको देने हैं उतना नंबर दीजिए और यहाँ पर चढ़ा दीजिए, जैसे ही ग्रेड आप करेंगे उसका नंबर आप चढ़ा दीजिए, आप नंबर उसका चढ़ जाएगा और इतने नंबर उसको मिल जाएंगे।
समझ रहे हैं सर बात कि नहीं समझ रहे हैं? सो बताइए। जी समझ रहे हैं सर। तो ये सारी जी सर। चीजें ऑटोमेटिकली क्या होती है सर, यहाँ पर मेंटेन होती रहती है। उनका जो भी आपने नंबर दिया, ग्रेड दिया, तो आप लड़के को ना कहीं आना है जाना है, आपको भी कहीं आना जाना नहीं है, आपने यहाँ असाइनमेंट चढ़ा दिया, बोला भाई 10 तारीख तक लेके जमा कर दो, लड़के ने 10 तारीख तक लेके जमा कर दिया, आपने ग्रेड कर लिया, ग्रेड करके उसका नंबर दे दिए, जो भी नंबर दिया आपने ग्रेड करेंगे। यहाँ जैसे ही ग्रेड करेंगे पूछेगा कितना नंबर देना चाहते हैं, नहीं देना चाहते हैं। देखिए सर ये ग्रेड लिखा हुआ ना, ग्रेड आउट ऑफ 100 कितना देना चाहते हैं। मान लीजिए हमने इनको दे दिया 85 नंबर, जो भी देना हमको दे दीजिए, 50 नंबर का था, सॉरी 50 का था, 100 का, जो भी था हमको देखा नहीं था। तो मान लीजिए आपने दिया 45 नंबर, तो 45 आपने दे दिया, सेव चेंजेस कर दीजिए सर, है ना, एंड सो नेक्स्ट। तो देखिए सर आ गया आपका, सेव चेंजेस करिएगा तो ये चेंज हो गए। तो इस तरह से आप सर देखिएगा ये सारे काम इसके होते हैं। मेरी बात समझ गए सर कि नहीं? जी सर। तो आई मीन टू से कि आप टेक्नोलॉजी का अगर इस्तेमाल करेंगे तो आपके टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में भी बहुत सारी आसानियां आपके लिए पैदा हो जाती हैं। उसके बाद सर एक नाम हमने आपसे लिया था स्वयं का। तो स्वयं अगर देखना हो सर तो स्वयं टेक्नोलॉजी पे जाइएगा, स्वयं सिर्फ गूगल पे लिख दीजिएगा, गूगल स्क्रीन दिख रहा होगा आपको, यहाँ स्वयं सेंट्रल पे जाइएगा। तो स्वयं सेंट्रल पे देखिए ये स्वयं का सर वेबसाइट है, स्वयं का देख पा रहे हैं सर, ये वेबसाइट है। इसमें मान लीजिए INI इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, जो AMU है सर और BHU वो INI में आते हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। व्यू कोर्सेज, तो देखिए सर व्यू कोर्सेज आपने क्लिक कर दिया, तो देखिए सर इस वक्त यहाँ AMU और BHU ने जो कोर्सेज लॉन्च किया हुआ है इस सेमेस्टर के लिए, यानी जुलाई से दिसंबर के लिए, वो इतने सारे कोर्सेज हैं सर, ये सारे कोर्सेज इन्होंने लॉन्च किए हैं। इसमें से मान लीजिए कि आपको लगता है कि हमारे स्टूडेंट को ये कोर्स पढ़ना चाहिए, तो आप बता सकते हैं कि भाई जाओ इस कोर्स में एनरोल कर लो, बहुत अच्छा कोर्स है। से फॉर एग्जाम्पल डेटा साइंस यूजिंग पाइथन मान लीजिए कोर्स है, इसको हमने देखा कि मान लीजिए लड़का को सीखना चाहता है। देखिए सर इस वक्त यहाँ पर कितने बच्चे इनरोल्ड हैं, 12,198 बच्चे ऑलरेडी इनरोल्ड हैं। यहाँ पर प्रोफेसर साहब बता रहे हैं 2 मिनट में कि इसमें क्या क्या पढ़ाएंगे, ये कोर्स में क्या क्या कवर किया जाएगा, ये लिखा हुआ है। और इसमें सर 12 वीक का कोर्स लेआउट देखिए लिखा हुआ है कि 12 वीक में यही चीजें हम कवर करेंगे, देख रहे हैं सर। उसके बाद ये प्रोफेसर के बारे में लिखा हुआ है, दोनों प्रोफेसर। कोर्स सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा, अगर आप इसको कंप्लीट कर लेते हैं इस कोर्स को तो आपको एक सर्टिफिकेट भी मिलेगा, 4 क्रेडिट उसमें लिखा हुआ होगा। जो भी 12 वीक का कोर्स है, 4 क्रेडिट कोर्स है, 22 तारीख से ये शुरू हुआ है, 11 अक्टूबर तक चलेगा, 29 जुलाई को इसका एंड हो जाएगा एनरोलमेंट, यानी ये वाला बटन जो देख रहे हैं लाल वाला बटन डीएक्टिवेट हो जाता है सर। उसके आगे आप देखिए 16 अगस्त तक फॉर्म भर सकते हैं और 25 अक्टूबर को इसका एग्जाम होगा फाइनल। तो ये सब चीजें अगर पास कर जाएंगे तो आपको 4 क्रेडिट का एक सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा। सो आई मीन टू से कि ये सारी चीजें टेक्नोलॉजी के माध्यम से आपको घर बैठे अगर बच्चा पढ़ना चाहता है, क्योंकि उसके कॉलेज में डेटा साइंस पाइथन पढ़ाने वाला कोई टीचर नहीं था, तो उसको डिप्राइव होने की जरूरत नहीं है सर। यहाँ पर आए ये सारी चीजें यहाँ पर मिल जाएंगी उनको। स्वयं में हर सेमेस्टर में 1000 कोर्सेज लॉन्च होती हैं, तो उसमें अगर लड़के को कुछ भी सीखना है तो यहाँ से पढ़ सकता है। सो आई मीन टू से जैसे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस हो, एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस हो, एकेडमिक प्रोसेस हो, किसी भी प्रोसेस में आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके सारे प्रोसेस को मोर एफिशिएंट, प्रोडक्टिव एंड ट्रांसपेरेंट बना सकते हैं और अच्छा गुड गवर्नेंस आप हासिल कर सकते हैं। सो दैट वाज ऑल अबाउट ई गवर्नेंस सर। नाउ आई एम ओपन फॉर क्वेश्चन आंसर सेशन सर। अगर आपके पास कुछ क्वेश्चंस वगैरह हो तो प्लीज आस्क करें सर, क्वेश्चन हमसे पूछें सर। अगर बोलिए सर, अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं प्लीज फील फ्री टू आस्क। इतने डिस्कशन के बाद आपके मन में कोई सवाल आया हो, कुछ पूछना हो तो पूछिए सर, जरूर पूछिए। अपने आप को अनम्यूट कीजिए और पूछिए सर सवाल। कोई सवाल? सर ये जो स्वयं में कोर्सेज होंगे उसमें फीस? हाँ सर, स्वयं में सर सीखने के लिए अगर सिर्फ आप पढ़ने के लिए करना चाहते हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट है सर, कोई तरह का फीस नहीं है, है ना। पूरे सेमेस्टर तक उस कोर्स को पढ़ सकते हैं, सारे वीडियो भी मिलेंगे, सारे टेस्ट वगैरह दे सकते हैं। लेकिन अगर आपको सर्टिफिकेट चाहिए तब उसके लिए 750 रुपए का फीस है सर एक कोर्स के लिए, है ना। तो 750 रुपए देंगे तो उसके एग्जाम में आप अपियर हो पाएंगे, फाइनल एग्जाम में, और आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा। ठीक है रितेश जी? जी सर। एनी अदर क्वेश्चन सर? कोई और क्वेश्चन पूछना चाहते हैं? अगर आप फिर जैसे टीचर हैं, आपको सिर्फ सीखना है, सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, तो सीखने के लिए आप अपडेट करने के लिए अपने आप को पढ़ सकते हैं, उसके लिए कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है, एनरोलमेंट इज फ्री। जी जी। एनी अदर क्वेश्चन? और किसी को कुछ सवाल पूछना हो तो पूछिए प्लीज। योगेश जी आपको कुछ पूछना हो? हाँ पीछे मैम। सर कोई क्वेश्चन नहीं पूछना सर, इस बार आज मजा आया सर, इस बार तो और भी मजा आता, लेकिन मेरे पास टाइम कम है, 1.5 घंटा था, इसलिए मैं कर पाता हूँ। गुड इवनिंग सर। बताइए डॉक्टर जी। Regarding the learning system that you have just shown us, I just want to ask one question. So after we have done the evaluations,
are the marks or the grades going to be visible to the students? I mean, are they going ये to be दोनों able to ऑप्शन मौजूद है access? मैडम. Both the options are over there. If you want to make public, then it will be informed to the student. If you want to keep it private, then it will not be shown to the student. Fine. Both the options are available. ठीक है? Okay, Is it thank okay, you, ma'am? sir. Yes, sir. Both the options are there. It is up to you. If you want to make it public, then the message will go to the student that you have got 45 marks. If you want to keep it private till certain time, then it will be maintained over there, but will not inform to the student. Any other question, sir? Any other? Yes. Any other question? क्वेश्चन पूछिए सर, तो दूसरों लोगों को भी फायदा होता है उससे. क्वेश्चन पूछने में हमको लाज शर्म नहीं करना चाहिए. कुछ ना कुछ पूछिए तो बाकी चीजें भी क्लियर हो जाती हैं और हमें भी थोड़ा पता चलता है कि आपको कुछ समझ में आया भी नहीं. क्वेश्चन नहीं पूछने का मतलब हम समझते हैं कि 1.5 घंटे हम बोलते रहे, मोनोलॉग. इट वाज ए मोनोलॉग सॉर्ट ऑफ थिंग एंड नोबडी आस्क्ड एनीथिंग, तो समझ में आता नहीं है थोड़ा. इफ यू वांट टू आस्क क्वेश्चन प्लीज गो अहेड. बातें समझ में आई या नहीं समझ में आई सर, सो बताइए. चलिए अब आगे बात करते हैं. सर आई सर, बहुत बढ़िया से समझ में आई है सर इस बार तो. चलिए सर, बहुत अच्छा है. तो आगे बताइए सर कि हम आप क्या कर सकते हैं, सो बताइए थोड़ा सा. सर मैं चाहता हूँ कि इसमें एक लेक्चर आपका और हो जाता सर, इसी तरह से थोड़ा हिंदी में, तो बढ़िया हो जाता सर. नहीं हो जाएगा, लेकिन है कि होता क्या है ना कि शॉर्ट टर्म प्रोग्राम है आपका, एक ही हफ्ते का कोर्स होता है सर, और उसमें डिफरेंट एस्पेक्ट कवर करने पड़ते हैं. तो जो हमारे ऑर्गेनाइजर्स होते हैं उनकी थोड़ी लिमिटेशन होती है सर, कि उसमें है ना डिफरेंट पार्ट्स. तो चलिए सर, नेक्स्ट टाइम कोई भी कोर्स हो एएमयू में, आप कौन सा बोल रहे थे, योगेश जी बोल रहे हैं क्या? योगेश जी. जी सर, जी सर. योगेश जी, आप जो यूजीसी एचआरडीसी एएमयू का जो वेबसाइट है यानी एमएमटीसी का वेबसाइट, उसको विजिट करते रहिएगा. यहाँ पर टेक्नोलॉजी के बहुत सारे कोर्स होते रहते हैं शॉर्ट टर्म के. तो कोई भी शॉर्ट टर्म जी का सर. कोर्स हो, घर बैठे बैठे इसको आप क्या कीजिएगा सर, उसमें एनरोल हो जाइएगा. तो उसमें हम लोग सिर्फ टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बहुत सारी बात करेंगे, तो आपको और अच्छा भी लगेगा और सीखने का मौका भी मिलेगा सर. ठीक है सर. जी सर, जी सर, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका शुक्रिया. एनी अदर क्वेश्चन, एनी अदर क्वेश्चन? कोई और? सौमल्य घोष, सौमल्य जी, सौमाल्य घोष. Okay, thank you very much. If you don't have any question, then we will wind up this session. So now, am I allowed to leave the session, please? बहुत बहुत शुक्रिया सर. Okay, sir. Thank you very much. Thank you very Thank much you, for the listen. Thank you. Thank you, sir. Now I am leaving the session. Thank you, sir. Thank you.